Okay, so last time we discussed about the functions and also discussed about the conditional statement if and else. So anybody have any doubt, you can ask me your queries, not only from the previous session, from all the previous sessions. If you have any doubt, then I will proceed to the next. Payal, Ranjita, Shruti, who has joined with this Sanand? Who has joined with the name of Sanand? Am I audible to everybody? Payal, Ranjita, Shruti? Yes, yes. Yes, sir. Okay, so I don't know why people are not joining today. Okay, so last time we have discussed all these things. Today we are going to discuss about the for loop, discuss about the different type of loop. So I will start from the problem statement, then we'll come to the proper topic. So let me show you one thing. Let me create a class and I will this file new, and thus I'm creating a class, and here I will say loops. Yeah. Okay, so I'll do one thing. I'm writing a statement here, SYSO. This is shortcut key. And then I'm writing here, got. Okay. So when I will run this, what will happen? Anybody can tell me what will happen when I will run this program? It will just print the God. Yes, it will print the God. Now, the requirement is that I want to print the God 5 times. So what I can do, if somebody is not aware about, you can say the further topics of Java, he can simply say that, or she can simply say that, okay, for printing a God once, you have just written a statement, system.out.println God. So if you want to print it 5 times, you can write it 5. Yes or no? This is a simple. So in this way, we can do this thing and can run it. Okay. So it will print the first. Now, if somebody says that I want to print it 5,000 times, I want to print the system dot, I want to print the God 5,000 times. Now tell me, it is we can do it 5,000 times. Okay, right? We can copy paste and write the same SOP statement 5,000 times. But do you think that it is something that is feeling that you are doing the something wrong, because there should be some better approach to achieve this? Yes or no? Yes. Because it is not something, because maybe we can write the statement 5,000. Now somebody is saying that, can you execute the printing of God 5 lakhs times? Now it is, people say, no, it is something is impossible. It is not impossible, but you can think about that, writing same statement 5 lakh times. Yes or no? Yes. And here you will see one beautiful thing is that actually you are not writing different statements. You are not writing different statement. Only the requirement is that you have an instruction. You have a proper instruction. You have a proper statement. But the requirement is that you want to execute this proper particular statement multiple times. So instead of writing this statement again and again, Java has given you a concept that is called loops. ठीक है? तो अगर आप सही से देखो तो यहाँ पे मैंने 5 बार स्टेटमेंट को लिखा है. मुझे अगर 5 लाख बार भी लिखना पड़े तो एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही स्टेटमेंट को मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम राइटिंग इट मल्टीपल टाइम्स, रिपीट कर रहा हूँ. सो व्हेनेवर यू आर रिपीटिंग, जावा give us a concept that whenever you want to repeat a particular statement multiple times, you can do it, and the concept is called loop. तो कैसे करते हैं? Loop. This is the statement which you want to run it multiple times. ये वो स्टेटमेंट है जिसको आप मल्टीपल टाइम रन करना चाहते हो. तो देखो, जब भी मैं कहता हूं कि आप किसी कोड और ब्लॉक पे whatever you want to put some condition, you want to wrap, always try to define the scope. तो बोलते हैं कि लोग for loop होता है, while loop होता है, लेकिन हमेशा मैं बोलता हूं उसको आप ऐसे समझो. सबसे पहले whatever you want to execute, you want to put some condition on the statement,
you want to put some loop on the statement, just try to wrap the code in a block. तो मैंने इसको क्या कर दिया, देखो ब्लॉक में रैप कर दिया, ठीक है. So now this statement is wrapped in a block, this one. अब इसमें सिंटेक्स क्या होता है, in case of loop for, yes or no? मैंने यहाँ पे for Yes. लिखा. Now the special thing is that what happens that whenever you put some condition is this loop, on the basis of that condition this block is going to be executed. अब इस ब्लॉक में एक स्टेटमेंट लिखा हो, चाहे 2 लिखे हो चाहे 10 लिखे हो, the thing is that this whole block will be going to be executed on the basis of the condition of this one. ऐसे ही आपने देखो लास्ट क्लास में what you have learned if. आपने क्या पढ़ा था, ये एक ब्लॉक है, this block is wrapped with the if statement. तो if conditional statement में जो आप डालोगे उसके बेस पे ब्लॉक रन कर जाएगा. Same thing we are going to do with the help of loops. Loops में क्या होगा, two things will be there. You have to tell the condition as well as you have to tell the number of times you want to execute it. Getting my point? Yes. तो आपका Yes. your for loop syntax is actually divided. You divide into 3 parts. देखो 3 parts, and the 3 parts are actually separated by the colon, semicolon. Okay. So now the thing is that what you write in this for loop, 3 parts are there. This first part is known as initial declaration, Initial declaration, as well as you can say initialization. Initialization. Okay, declaration and initialization of the variable. So you can say this is the first part. Second, you can say part of it is called condition. दूसरा part क्या कहलाता है, condition. And third part is known as increment and decrement. I will tell you why this thing is important. So now I have written, the thing is that your for loop syntax is actually divided into 3 parts. One part is known as declaration initialization, second part is known as condition, and third part is known as increment and decrement. I will say that this is the third part, but you can assume that this body is also a part of your for syntax, and this you can assume that this is body. Yes or no? The whole block which is written, Yes, you yes. can assume that it is a body of the loop. Box. You can say body of the loop. Now why I'm specifying here, because whenever you try to run the loop, you will see when the body part comes into the execution. Okay, you will see it. Now you will tell me, before giving a proper you can say example of a loop, I will ask you one thing. Whenever you want to count something, how you count something in your real life? आप अपनी रियल लाइफ में जब भी कोई चीज काउंट करते हैं, और यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ सम किड्स इन योर हाउस. आपके घर में कोई बच्चा है, अगर वो कोई काउंटिंग करता है, टेक द एग्जांपल, यू हैव जस्ट गिवन अ पैकेट ऑफ सम टॉफीज एंड आस्क देम टू काउंट 10 चॉकलेट्स फ्रॉम दैट पैकेट. तो कैसे 10 चॉकलेट्स निकालता है? वैसे 10 टॉफी, हाउ ही इज गोइंग टू काउंट? वो क्या करता है? ही जस्ट यूज द फिंगर्स. यस और नो? Yes. वो क्या करता है? एक टॉफी निकालता है, he just pick one toffee from that you can say that packet and just put out of that packet. Now he try to, okay, one is okay, then he just put second toffee and then to the second figure, third. In this, actually the thing is that what I want to tell here, whenever you are doing some counting, actually you have to make a counter for that, so that you can count, you can at any point of time you can get the information that how many counting you have already done. Are you getting my point? So you need a counter for that. You can take the example of also then when in, you can say, when in first or second class kids learn about the you can say addition and subtraction, how they understand the subtraction and you can say addition. If you have learned, they use the standing lines. Yes or no? वो क्या करते थे? कुछ standing line का यूज करते थे, Yes. है ना? अगर आपको अपना भी बचपन याद आ रहा हो, तो हमसे बोलते थे कि we have to use 3 + 2. तो हम सबसे पहले क्या करते थे? We just state 1 2 3, then we again after some Yes. space we write 2 1 2. अब हमें ऐड करना होता तो हम कैसे करते थे? We just start counting all the standing lines. 1, इसको क्रॉस करते जाते थे और उसको काउंट करते जाते थे. 1 2 3
4 and 5. Yes or no? ऐसे क्या करते Yes. थे? If you want to, if you take the example of that which I have given you, like how many chocolates that the person or kids have to just take out of that packet. So वो कैसे करते थे? वो ऐसे करते थे, काम करते थे। वो सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन यहीं पे कर लेते हैं। With if they don't want to use their finger, they वो क्या करते हैं? Just they draw the 10 lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. Yes, वो ऐसे कर लेते हैं। अब वो क्या करते हैं? They will just pick one chocolate from or one toffee from the packet और एक को क्या कर दिया? कट कर दिया। ऐसे वो एक एक निकालते जाते हैं, ऐसे कट करते जाते हैं। And when all the lines are, you can say, just completed, they simply say, Mama or Papa, I have taken 10 toffees from that. Yes or no? तो यहाँ पे ये जो आपकी काउंटिंग कर रहे हैं, इस काउंटिंग में ये जो आप काउंटिंग करते हैं, यू ऑलवेज यूज अ वेरिएबल दैट इज कॉल्ड काउंटर, जिससे आप बताते हो मैंने 1 कर लिया, आई हैव काउंटेड 2, 3, समथिंग लाइक दैट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो व्हेनेवर यू आर डूइंग सम काउंटिंग थिंग्स, you use a specific variable to count that how many times you have performed the action. So here that is known as counter variable. So in the declaration and initialization part, especially you use this part to declare a counter variable. You can take any name. For example, I can take the type is int and I can take the variable name anything. If you want to take it meaningful, you can give a name counter. आप कुछ भी ले सकते हो. People usually take it. क्या लेते हैं? कोई A लेता है, B लेता है, but you can take it as a counter. So I'm taking counter 0. Is it okay? Yes. So now thing is that Yes, sir. so this is the counter variable. So with the help of this counter variable, my target is to run this code till the time my counter not reach to my desired number of times, like 5 times, 10 times. So मैं यहाँ पे example लेता हूँ. I'm taking the example of 5 times. So I have to run this code till my counter value reach to the less than equal to 5. Yes or no? मैं इसको कब तक रन करूंगा? मेरा कोड कब तक चलना चाहिए? मुझे अपनी काउंटिंग कब तक चलानी है? जब तक मेरे काउंटर की वेरिएबल क्या हो जाए? 5 ना। ठीक है? So here you can see there is a loophole for the timing. Okay, or you can do one thing for understanding it. Let make it 1 and make the counter variable less than equal to 5. तो हमें कब तक चलाना है? 1 से शुरुआत करनी है और हमें तब तक ये कोड चलना चाहिए जब तक हमारे काउंटर की वैल्यू क्या ना हो जाए? 5 तक ना हो जाए। Getting my point? Yes or no? Yes. Yes. Now the thing is that you have initialized a variable counter, you have initialized a value 1. Now you are putting the condition. लेकिन ये 5 तक जाएगी कैसे? You will try to increase the value. जब आप काउंटर की वैल्यू बढ़ाओगे तभी तो ये क्या होगी? Increase होके 5 तक जाएगी. Otherwise क्या होगा? It will always become 1. So this third part, count, increment, decrement, is actually used to increase the value. यहाँ हम क्या लिखते हैं? Counter equal to counter plus 1. Getting my point? Yes or no? Yes. So यहाँ पे you have seen there are, you can say, especially three parts of the for loop. One is called declaration and initialization, where you can declare your you can say variables. It is not mandatory that you only need to declare the counter variables. Counter is one example. If you need any other things which can be used in your program logic, you can declare the variables here also. Second thing is that you have to define the condition, and third part is known as counter, increment or decrement. Okay, I will tell you that when you can use the increment part and when you can use the decrement part. Okay, so now this is declaration initialization, this is condition, this is increment, decrement, and this whole block is known as body. Okay, now you will see when I'm running it, what it will do. Tell me. It will print the God 5 times. 5 Getting my point? Yes. So now here the important part is that you have to understand that how this program is executed, how this loop is executed. So here declaration initialization, I will give it step 1. मैं इसको क्या नाम दूंगा कि step 1. Getting my point? Then the condition part, I will give it step number 2. And now I will give the body part to step number 3. I will tell you the reason.
and then I will give the increment decrement to the step 4. 4. Are you getting my point? And there is a Yes. specific reason for that. It will make your understanding about the for loop easy. Now you can easily tell me the program will start from step 1. So step 1, what it is going to do, it will declare a counter variable in the memory with the value of 1. ये क्या करेगा step 1 में, एक वेरिएबल बनाएगा काउंटर नाम से और उसकी वैल्यू क्या कर देगा, it will initialize to 1. Is it okay? Now it will go to the step 2. What it will do in the step 2? It will check that whether the value of the counter in the current condition is less than equal to 5. So क्या इस समय काउंटर की वैल्यू 5 से कम या उसकी छोटी है? Yes, it is 1. Yes or no? Yes. So if the condition is true, after step 2, the control will go to the step 3. Getting my point? अगर कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेप 2 के बाद कौन सा पार्ट रन करता है? स्टेप 3, एंड दैट इज द होल बॉडी. गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या करेगा, स्टेप 1 पे काउंटर it will create a counter variable with the initial value of 1. Then it will go to the condition statement, conditional part, and it will check what is the current condition is true or false. Yes, current condition is true. So the control will go to the step 3 and will simply run this block. And because in this block we have only written one statement got, so it will print it. Is it okay? Yes or no? Now after this control will go to the step 4. अब जब step 4 पे जाएगा, so what it will do? First of all, right side it is writing counter plus 1, means whatever is the value, previous value of the counter, that will be incremented by 1. And same you will initialize in the same counter. तो ये क्या कर रहा है कि जो भी काउंटर की वैल्यू उस समय आपकी थी उसमें एक ऐड करेगा, उसको दोबारा किसमें स्टोर कर देगा? काउंटर में. So now after step 4, what will be the value of counter? 2. Who is not getting? And everybody can tell me. Rabia, you are getting? तो क्या हो जाएगा? क्लियर हो रहा है? जब स्टेप 4 पे कंट्रोल आएगा तो राइट साइड का कोड में काउंटर प्लस 1, काउंटर की वैल्यू क्या थी? इट वाज 1. So 1 plus 1 become 2. Yes or no? And then 2 will be stored in the same counter variable. Yes or no? Payal, you are getting? Payal, Yes, yes, yes. Ranjita, you are getting? Yes, sir. Okay. Shreyas, you are getting? Yeah, definitely. Yeah. So now the value of counter will become 2. अब counter 2 की become होने के बाद after step 2, the control will come to the, tell me which step? Step 1. Yeah. Step 1. Step 1. No. Now this is the, you can say, there is a special thing here that step 1 only runs once. फॉर लूप की लाइफ में जो स्टेप 1 होता है वो कितनी बार रन करता है? केवल एक. Only once. Only once, and it is very very important thing. I will tell you the reason also. Just think about that. हमारा पर्पस क्या था? We have to run the code till the time condition is not satisfied. Yes or no? अगर आपका स्टेप 4 के बाद स्टेप 1 पे चले जाऊंगा तो what will happen in the step 1? ये काउंटर वेरिएबल बना के फिर से इसकी वैल्यू क्या कर देगा? 1. तो हम वहीं पे आके खड़े हो गए जहां से हमने क्या की थी? शुरुआत. Yes or no? Yes. So now you will see the rule is that always the for loop start from step 1, then we'll go to step 2, then step 3, then step 4. But after step 4, the control will go to step 2. Now the loop is 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. One will run only in the once in the life of the for loop. Getting my point? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लूप में, ट्रस्ट मी, लूप इज वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट, but the people do not think about from this perspective that how it is going to be executed, what steps it follows. अगर आपको ये क्लियर हो जाए, ट्रस्ट मी, लूप में और बड़ा कॉन्सेप्ट कोई होता नहीं है. People, you in other session you will see that वो बताएंगे आपको, क्या मैं आपको नेस्टेड लूप बताऊंगा, अब आपको नेस्टेड फॉर के अंदर व्हाइल दिखाऊंगा. There is nothing something like that. कुछ भी नहीं. एक ही चीज होती है क्या? There is a loop and loop follows the steps. Getting my point? अब इसमें मैंने God की जगह, just think about that. I'm writing one more statement. Just see what will happen. मैंने यहाँ पे लिखा God, I'm writing Lord God. So what will step? What is step 3? Step 3 is to execute this whole block. Yes or no? तो ये पूरा statement हर बार मिला के कितनी बार चलेगा? Lord God 5 times. 5 times. Yes or no? Yeah.
तो आपको ये मतलब नहीं है कि एक स्टेटमेंट चलता है, whatever is written in the body of the loop that is going to be executed. You are getting my point? Yes. चलिए अब आपके सामने इसको फिर से रन करते हैं वन बाय वन. दैट इज कॉल्ड ड्राई रन. एंड व्हाई ड्राई रन इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज whenever you are going to face the interview, you don't get an opportunity to run the program on your laptop. They simply give you a A4 side paper and you have to write the program. तो वहां पे आपको खुद ड्राई रन करके देखना पड़ता है. They will give you opportunity कि आप अपने प्रोग्राम को लिखो and then try to dry run it so that you can tell okay now program is ready and you can verify it. तो आपको कैसे करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ. This is step 1, this step 2, this step 3, this step 4. अब आप मेरे साथ देखो, कोई भी one of you can run with me and you will see the impact कि कितनी बार क्यों 5 बार प्रिंट कर रहा है. Now who is going to execute with me? Who want to be volunteer? कौन करेगा मेरे साथ? Shreyas? Yes, I can. अरे you should come with your, you can say concern कि मैं करूंगा है ना. चलिए श्रेयस करेंगे. श्रेयस, so we'll start from loop. तो step 1 पे जाएगा. What will it do? It will create a counter variable with 1. Yes or no? Yes, yes. Counter, yes. Now it will come to the step 2. Counter is less than 5. So counter की value it was 1. So it is less than 5. So it is true or false? True. True. So now if it is true, the control will go to the body. Third Yes step. or no? Yeah. Yes. So it's step 3. So this statement will be print. Lord print हो जाएगा. Correct. तो अब देखते हैं लॉट प्रिंट होने के बाद. Now the control will go to step 4. Step 4 के काउंटर की वैल्यू will become 2. 2 हो गए. है ना. 2 कैसे, किसी को नहीं समझ में आ रहा, you can tell me. I understand that I'm trying to tell you just like a spoon feeding, but it is very very necessary at this step. एक बार आपको समझ में आ गया, trust me, for के अलावा जितने भी लूप हैं you will find it very very easy, trust me. ठीक है. यहाँ पे काउंटर की वैल्यू 2 क्यों नहीं मैं बताऊं. काउंटर +1 you have done and then you initialize it on the same counter. आपने काउंटर की वैल्यू को बढ़ा के दोबारा किस में रख दिया, काउंटर में. Getting my point? Yes or no? Yes. Yes. So now the value of counter become 2. Now after step 4 control will come to the step 2. मैंने बोला step 1 तो एक ही बार चलता है लाइफ में. So on step 2 it will verify the condition of counter less than 5. Counter की value 2 है. So still it is less than 5. Yes. Condition is true. So condition is true. Control will come to the body part. Now it will print the LOD statement second time. Yes or no? Yes. After step 3 it will go to the step 4. Counter will become 3. 3. It will come to the condition part. Less than 3 5. is less than 5. Yes, condition is 2. It will go to the body. Third, it will print the LOD statement third 4. time. Control will go to the step 4. The value become 4. Counter 4 is less than 5. Again, it will run the step 4th time it is executed. Now Yes. control will go to the 5. 5 equal to 5. No. Step 4, the value become 5. 5. And now it will check. The condition is 5 is less than equal to 5. Less than equal to 5. The value is equal to 5. Yes or no? Yes. यहाँ पे इसका मतलब होता है less than equal to, मतलब या तो less than हो या equal to. So it is less than equal to 5. Condition is 2. So it will go to here. It will print the statement 5 times. Yes or no? Yes. Now the Yes. it will go to the step 4. Now the value of counter will become 6. 6. Control will go to the step 2. 6 is It is less than false. equal to 5. It is false. False. So when it is false, the control will not go to the step 3. It will come to the out of this loop, and that is, you can say, assume that the next line after the loop. Getting my point? इस बॉडी के बाहर, इस लूप के बाहर जो नेक्स्ट लाइन है वहां पे कंट्रोल क्या आता है, आ जाता है. यू कैन थिंक अबाउट दैट, इट एग्जिट आउट ऑफ द लूप. गेटिंग माय पॉइंट? आप इसे क्या बोल सकते हो, ये लूप से क्या होता है, एग्जिट कर जाता है. तो इसने देखो यहाँ पे क्या कर दिया, इसने 5 टाइम प्रिंट कर दिया. नाउ टेल मी, हु इज गोइंग टू टेल मी? राबिया इज गोइंग टू टेल मी. राबिया, आई वांट टू प्रिंट द लॉर्ड स्टेटमेंट्स 10 times. What changes I have to do in this program? Rabia, tell me. We are not able to hear you. Can you come a little bit closer to the mic? Okay, sir. Are you getting me? Yes, now we are able Okay, to. so the counter value, we need to change counter less than equal to 10. So Exactly. the count will run from 1 to 10. Yes, And it will when run it to. is- Yeah, so when it is 11, then it will come out of loop. Yes, it will come out of the loop. Now you can see here. Now you can see here. Here I'm using the you can say condition where I'm starting from 1. Then I'm keep on incrementing the counter variable, and that's why we are checking counter less than equal to 10. है ना? अच्छा, अगर इस काउंटिंग को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. जैसे you can take the example. You have 2 ways to counting. आप क्या करो, आपको अगर मैं बोलूं you have to count 5,
तो आपको अगर किसी बच्चे से बोलोगे 5 काउंट करना है तो वो ऐसे स्टार्ट करता है, एक एक करके लाइन स्टार्ट करता है, 1 2 3 4 5, मुंह से बोलता जाएगा एंड इट विल बिकम 5। गेटिंग माय पॉइंट? तो काउंटर कहां से स्टार्ट होता है? काउंटर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 goes to 3 4 and 5। एक तरीका ये भी होता है, पहले क्या करते हैं वो लोग, पहले से 5 लाइनें खुद लिख लेते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो 5 लाइनें लिखने में दे ऑलवेज स्टार्ट द काउंटर की, हमारा काउंटर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट उन्होंने क्या मान ली है? 5। काउंटर स्टार्टिंग फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यू। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. तो काउंटर की वैल्यू को आपने क्या किया, आप 1 से मत स्टार्ट करो, आपने मान लिया इट इज समथिंग लाइक द रिवर्स प्रोसेस। आपने माना काउंटर की वैल्यू 5 है, आपने 5 लाइनें खींच दी। अब आप क्या करते हो, एक एक लाइन को यू जस्ट कट वन लाइन एंड द काउंटर, द वैल्यू ऑफ काउंटर विल बिकम लेस। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, देखो काउंटर की वैल्यू मैंने स्टार्ट की 5 से, मुझे 5 बार काउंट करना है, तो मैंने पहले मैक्सिमम वैल्यू ले ली एंड देन आई विल डू, जब मैं एक लाइन को कट करूंगा मैं बोलूंगा काउंटर की वैल्यू 4 हो गई, 3 हो गई, ऐसे बोलूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 5 4 3 2 1। तो एक्चुअली हमने काउंटिंग स्टार्ट करने का तरीका क्या है, आप 1 से 5 काउंट करो, तब भी आप यू आर मेकिंग अ काउंटिंग ऑफ 5 एंड यू कैन स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 5 टू 1। गेटिंग माय पॉइंट? तो दोनों केस में आप काउंटिंग, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, बिकॉज सम टाइम इट इज यूजफुल दैट you are just trying to use some other person's code and he has just used that concept। अगर किसी और बंदे ने कोड लिखा और आप उसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहो तो कैसे समझोगे? यू शुड नो द बोथ द कंडीशन। अब देखो मैं इसको 10 बार रन कर रहा हूं, इसको 10 बार रन करने का एक तरीका और बता सकता हूं। अगर मैं काउंटर को आई कैन स्टार्ट फ्रॉम 10, यस और नो? मैं काउंटर को 10 से स्टार्ट करता, बट नाउ द Yes. कंडीशन विल बिकम Le- greater Greater than Then where I will write greater than equal to 0, greater than equal to 1, greater equal to 1, या तो हमें क्या, देखो कंडीशन क्या बन गई हमारी, हमने इसको रिवर्स कर दिया, हमने काउंटर 10 से स्टार्ट किया, हमने कंडीशन बोली कि हमारा काउंटर तब तक चलेगा जब तक इसकी वैल्यू क्या है, 1 या 1 से जब बड़ी। वो काउंटर -1 भी होगा प्रदीप लास्ट में। यस यस, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस इज नोन एज डिक्रीमेंट। अगर हमने ऐसा किया तो अब हमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है? डिक्रीमेंट का। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. तो देखो प्रोग्राम इज स्टिल सेम, दैट्स व्हाई पीपल से दैट कि आपके प्रोग्राम में वो क्या चेक करते हैं? लॉजिक। अब देखो मैंने वी हैव नॉट लर्न एनी न्यू थिंग, हमने उसी प्रोग्राम को वी हैव रिटन प्रोग्राम टू राइट द लॉर्ड स्टेटमेंट 10 टाइम्स। एक तरीका हमने क्या किया, वी स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम 1 and just reach to the less than equal to 10, and now we have achieved the same thing where we are starting the counting from 10 and we are saying it should be greater than equal to 1। तो जब मैंने starting maximum से की, we are using the decrement part, and we are when we are starting from the you can say minimum value, we are using the increment part। yes or no? Yes. Yes. तो यहाँ पे why it is important, क्योंकि आपको कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ये नहीं होना चाहिए केवल that you are able to write the program to write the statement 5 times। आपको कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ेगी जहां पे किसी और ने प्रोग्राम लिखा, आप कैसे समझोगे इसको? So you have to do this thing that you can make it possible in both the ways। You can start from the minimum value and go to the maximum value, and you can start with the maximum value and you can reach to the minimum value। Getting my point? Yes or no? Yes. Yes. ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देता हूं। इफ यू विल गो टू द बैक, अगर हम फिर से करें तो हमने यहाँ पे लिखा था लेस देन इक्वल टू 5 लिखा था हमने, और यहाँ पे वी हैव रिटन काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1। यस और नो? तो यहाँ पे Yes. one more thing you will learn, that this the value whenever you want to you can say increment the value of a variable by 1। अगर आपको किसी वेरिएबल की वैल्यू 1 बढ़ानी होती है तो काउंटर इक्वल टू काउंटर 1 प्लस 1 लिखने की जगह दे हैव गिवन यू शॉर्ट फॉर्म दैट इज कॉल्ड काउंटर प्लस प्लस। सो काउंटर प्लस प्लस, दिस इज इक्विवेलेंट टू काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. तो अगर आप इसको ऐसे लिख दो काउंटर प्लस प्लस, तो एक शॉर्टेस्ट वे है, इसका मतलब वही होता है जो आपका है काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1। देखो अभी इट इज रनिंग 5 टाइम्स। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes. Yes. चलिए अब one new thing we will learn, I want to run the same program 5 times but I want to start the counter from 0। Can you tell me what thing I have to change in this program to make it intact to run 5 times? मुझे इस प्रोग्राम में मैंने, yes
Counter less than equal to 4. less than equal to 4, or you can do one thing, Eh, less than 5. हाँ, है ना, हमने इक्वल टू का जो इक्वल टू, वी आर जस्ट गोइंग टू द कंडीशन ऑफ इक्वल टू 5, दैट वी आर नॉट कंसीडरिंग. नाउ वी आर सेइंग दैट लेस देन इक्वल टू 5 मींस 5 इज नॉट कंसीडर्ड. यस और नो? yes. तो व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, बिकॉज ये आपकी सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है, वेयर वी स्टार्ट द काउंटर फ्रॉम 0. बहुत कॉमन सी चीज है, बिकॉज इन सो मेनी यू कैन से कॉन्सेप्ट इन जावा दे यूज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग, और जहां पे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, तो वहां पे आपको पता होना चाहिए कि काउंटर अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे, सो हाउ वी कैन मैनिपुलेट द कंडीशन लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर एंड ग्रेटर देन इक्वल. गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes. ठीक Yes. है, चलिए. नाउ आई वांट टू शो यू वन अदर इंटरेस्टिंग थिंग. एक प्रोग्राम और लिखता हूं मैं आपके लिए, एक और फॉर लूप लिखता हूं यहाँ पे. लेट मी राइट इट. यहाँ पे I'm writing, I'm using a variable. Take the example int I equal to 0. Here I'm writing I less than equal to 2, and here I'm writing I plus plus. Is it okay? Yes. And here I'm writing God. Now anybody can tell me, when I run this loop, what will be the output? चलिए मैं आपके लिए रन भी करूंगा, क्या आउटपुट होगा अगर मैं इसको रन करूं? what will be the output? Tell me. Only once it will run. Like output will be one. No. 2. Given, because Yes, yes. the reason is that it is starting with 0. तो एक बार Zero, 0 yes. के लिए, एक बार 0 के लिए ट्रू हुआ ना. देखो step, this is Hmm. step 1. So now go to the step 2. Step 2 क्या कह रहा है? I less than equal to 2. क्या 0 2 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है. Yes. तो ये बॉडी रन कर जाएगी. Yes or no? Yes. Yes. Now the Yes. control will go to the I plus plus part. Now the value of I will become 1. Now अब इसकी वैल्यू 1 होगी. 1 is less than equal to 2. Yes. So Yes. it will run this thing. Yes or no? Yes. Yes. Now the control will go to the I plus plus. This time the value of I will become 2. Now 2 is less than 2. No. So it will not execute and come out of the loop. Yes or no? Yes or no? Yes. चलिए, अब मेरे लिए कौन मुझे एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बताएगा? मैंने एक काम किया है. दिस प्रोग्राम आई हैव ऑलरेडी एग्जीक्यूटेड इन फ्रंट ऑफ यू. मैंने प्रोग्राम को आपके सामने एग्जीक्यूट किया है. केवल एक चीज मैं चेंज करने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. मैं एक काम क्या करने जा रहा हूं. दिस इज स्टेप 1. मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल स्टेप है. स्टेप 2 ये है, स्टेप 3 है. एंड व्हाट इज द स्टेप 3? दिस होल बॉडी. यस और नो? Yes. सो मैं देखो, ध्यान से देखो, आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग. मैं इस बॉडी के अंदर से इस स्टेटमेंट का कोड हटा के दिस अनदर फॉर लूप आई एम ट्राइंग टू पेस्ट इन द बॉडी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने क्या किया, इस फॉर लूप की जो बाहर वाला फॉर लूप मैंने बनाया था, इसकी बॉडी में मैंने वो एक सिंपल स्टेटमेंट हटा के एक और लूप रख दिया. गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? Yes. अब आपके लिए दिमाग में, इन योर माइंड, यू शुड नॉट बी कंफ्यूज. यू हैव टू स्टिक ऑन द बिहेवियर दैट दिस होल बॉडी इज वर्किंग एज ए स्टेप 3. यस और नो? Yes. Yes. अगर आप इस पे स्टिक रहोगे, ट्रस्ट मी, यू विल नेवर कंफ्यूज. अदरवाइज पीपल विल टेल यू कि ये एक नया कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड लूप. क्या बोलते हैं इसको? नेस्टेड लूप. नेस्टेड लूप मतलब एक लूप के अंदर मैंने क्या यूज कर लिया? और दूसरा. एक Multiple. Or a लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है. रीजन इज दैट, टेल मी वन थिंग, इफ यू विल कंसीडर, इसको आप इस नजरिए से, डोंट ट्राई टू सी इन दिस वे दैट यू हैव रिटन अ फॉर लूप. यू कैन कंसीडर इट समथिंग कोड रिटन इन जावा. यस और नो? You can think about that. You have written some code in Java. It is a loop. It is a conditional statement. It is can be a SOP statement. It can be anything. But for you, it is just like some Java code which is written in this body. Yes or no? तो अगर Yes. आप इस वे में इसको रन करोगे, एंड ट्रस्ट मी, यू विल रन इट इजीली. देखो, फिर से फॉलो वही करना है, फिर से वही फॉलो करना है. आप मुझे बताना, कंट्रोल विल फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल विल कम टू स्टेप 1. काउंटर की वैल्यू क्या होगी? इट विल 0, right? Control will go to the step 2. Yes or no? Yes. Now it is true or false? True. It is true. So control will go to the body part. Yes or no? Yes. अब यहाँ पे Yes. देखो, सोचने वाली बात है. सब कुछ भूल जाओ. Just don't think anything about your you can say loop. Just think about that you are under your body step 3. Yes or no? और बिना कुछ सोचे समझे इस बॉडी के कोड को रन कर दो. तो ये बॉडी का कोड जब itself it will try to run it, so it will run 2 times. Yes or no?
Yes. Yes. 0 तो 1. सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ ये याद रखो कि बॉडी 2 पे हो, कुछ नहीं दिख रहा आपको, आपको सिर्फ ये दिख रहा है कि बॉडी का ये रन करना है। तो ये अपने आप में कितना रन करेगा? 2 बार। 2 बार. अब 0 2 1. बार रन किया, अब 2 बार रन करने के बाद आपको ये 2 बार रन किया, फिर से भूल जाओ ये कोई लूप था। आप तो बॉडी किस स्टेप पे थे? योर कंट्रोल विल गो टू द स्टेप 4, यस और नो, एंड योर काउंटर वैल्यू बिकम 2, सॉरी 1। 1. अब 1 हो जाएगी तो कंडीशन योर कंट्रोल विल गो टू द स्टेप 2, यस और नो। Yes. स्टेप 2 पे गया, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स बिकॉज नाउ द True. वैल्यू इज 1। True. ट्रू। True. अब ट्रू हुआ तो कंट्रोल विल कम टू द अगेन बॉडी, यस और नो। Yes. Body part. Again Yes. 2 अब times. फिर से बॉडी पे आएगा तो फिर से Again इसको two. पूरा रन करेगा, सो इट विल रन 2 टाइम्स, यस और नो। Yes. Yes. तो सिंपल सा एक लॉजिक है, सिंपल, कि स्टेप 3 के अंदर जो भी लिखा है, इट डजंट मैटर, इट इज अ फॉर लूप, इट इज अ व्हाइल लूप, इट इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट, इसके अंदर क्या लिखा है, इट इज एग्जीक्यूटेड जस्ट लाइक स्टेप 3। तो आप मुझे बताओ, जब ये 5 बार चलेगा तो 5 बार चलने के लिए ये अंदर वाला कोड कितनी बार चलेगा? 5 बार, एंड इटसेल्फ दिस कोड इज रनिंग ट्वाइस। तो क्या Twice. ये 10 times. कोड कितनी बार प्रिंट होगा? 10 10 times. times. You 10 times. guys are awesome. You are getting the point, yes or no? Yes. Yes. तो कौन कहता है कि आपका ये नेस्टेड लूप है? ये कोई नेस्टेड लूप। अब नाउ थिंक अबाउट दैट। आपको देखो एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो और देता हूं। आई विल डू वन थिंग, आई एम कॉपिंग दिस कोड, लेट मी डू वन थिंग। एक काम और करते हैं, यहां पे एक काम और करते हैं। हियर आई विल डू वन थिंग, आई एम राइटिंग दिस स्टेटमेंट हियर, यहां पे हम लिखते हैं लॉर्ड। आई विल you can spend mainly time on the for loop, and trust me, when you have spent time on your for loop, other loops will be very very easy, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, यहां मैंने लिखा लॉर्ड एंड आई एम राइटिंग गॉड। अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ। हु कैन टेल मी द आंसर ऑफ दिस प्रोग्राम? 10 times Lord and 5 times God. गॉड। और कहां प्रिंट होगा? जब ये 2 बार लॉर्ड प्रिंट करेगा, उसके बाद एक गॉड प्रिंट और करेगा, प्रिंट होगा. फिर Yes. अगली बार आएगा 2 बार गॉड प्रिंट करेगा, एक बार। बिकॉज द थिंग इज इट इज वेरी वेरी कॉमन थिंग, बड़ी कॉमन थिंग है दैट इन स्टेप 3 व्हेन यू विल कम टू द स्टेप 3, भूल जाओ सारी दुनिया, जस्ट थिंक अबाउट दैट कि ये कोड मुझे एक बार रन करना है, कर दो। जब ये रन करेगा, इट विल प्रिंट द गॉड 2 टाइम्स। व्हेन इट इज आल्सो पार्ट ऑफ इस बॉडी का ही पार्ट है, तो ये भी रन करेगा एक बार गॉड, यस और नो। Yes. इसके Yes. बाद देन इट विल गो टू द स्टेप 4। तो इसका मतलब स्टेप 4 पे आने के बाद इट विल गो टू द स्टेप 3। व्हेनेवर इट विल कम टू द स्टेप 3, स्टेप 3 में, इसीलिए मैंने बोला था इसको क्यों स्टेप का नाम दिया, दिस होल ब्लॉक इज अ बॉडी। तो ये पूरा कोड चलेगा 5 बार। अब 5 बार इंटरनल चलने के लिए, फॉर रनिंग इट इंटरनली 5 टाइम्स, दिस इज एक्चुअली इंटरनली रनिंग 2 टाइम्स। तो 2 बार गॉड, एक बार लॉर्ड, 2 बार गॉड, एक बार लॉर्ड। लेट मी रन इट। यू आर गेटिंग द कॉन्फिडेंस, यस और नो? Yes. तो देखो Yes. ये ऐसे रन करता है। अब यहीं पे आपको क्या होता है, बहुत सारी चीजें और होंगी, मैं आई विल टेल यू, बट बिफोर दैट लेट मी शो यू वन थिंग। मैं एक काम करता हूं, मैं इस प्रोग्राम को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करता हूं। मैंने क्या लिखा, एक फॉर लूप, आप ऐसे इमेजिन करो, एक फॉर लूप मेरे पास अलग से और पड़ा है, इसका नाम रखता हूं जे, इसको लगता हूं जे इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड जे प्लस प्लस। गेटिंग माई पॉइंट? Yes. अब मैं क्या करूंगा, इस पूरे लूप को मैं कट कर रहा हूं एंड आई एम जस्ट पेस्टिंग विद इन दिस एसओपी लॉर्ड। लॉर्ड की जगह प्रिंट कर दिया। आपको कोई बताएगा, अरे ये तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया। इट इज, दिस कॉन्सेप्ट इज समथिंग लाइक दैट। व्हाट इज दैट? नेस्टेड लूप, यस और नो? Yes. लेकिन यू ऑलवेज यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल। आप डिवाइड कर लो और रूल करो। कैसे? आपको सबसे पहले व्हेन द कंट्रोल विल कम टू द मेन फंक्शन, इट विल जस्ट आइडेंटिफाई दिस लूप, यस और नो? इस पूरे Yes. लूप के लिए दिस इज स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2 एंड दिस होल इज स्टेप 3। 3. ठीक है? तो अगर आप ऐसे इसको डिवाइड और रन करोगे, एंड ट्रस्ट मी इट विल इजी फॉर यू। अब जब स्टेप यहाँ पे आप जब पहली बार आओगे तो आप भूल जाओ कि आप बाहर कहाँ हो। आपके लिए तो ये क्या स्टेप 3 है, यस और नो? Yes. अब जब स्टेप 3 पे यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे वही रूल फॉलो होगा जो ऊपर वाले का। जब इस लूप को चलाओगे, सो इट विल स्टेप 1, स्टेप 2, दिस इज स्टेप 3, यस और नो? Yes. तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब यहाँ पे आओगे तो ये बन जाएगा स्टेप 1, ये बन जाएगा स्टेप 2, ये बन जाएगा स्टेप 3, ये पूरा लूप, और ये बन जाएगा स्टेप 4। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. है ना? मुझे पता है इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, लेकिन अगर मैंने आपसे क्या बोला, अगर आप केवल स्टेप्स को फॉलो करोगे तो यू कैन अचीव एनीथिंग। अब देखो, एक बार जब यहाँ आया तो जब ये लूप चलेगा, इस लूप के लिए ये पूरा पार्ट बॉडी है। कितनी बार चलेगा? जब यहाँ पे वैल्यू 0 2 हुई, times.
हाँ बिल्कुल, इट विल रन 2 टाइम्स, और जब ये 2 टाइम्स अंदर जाएगा तो हर 2 टाइम्स के लिए ये भी कितनी बार चलेगा, 2 टाइम्स, 2 क्योंकि टाइम्स, ये लूप अपने आप में कितनी बार चल रहा है, j इक्वल टू 0 एंड j लेस देन इक्वल टू, 2 बार, 2 ठीक है। बार। तो आप खुद मुझे देखना काउंट करके, एंड दिस इज योर असाइनमेंट, आप खुद काउंट करके बताना ये कितनी बार प्रिंट कर रहा है, एंड 20। ठीक है, और कैसे प्रिंट करना आप बता, ठीक है। इट इज समथिंग लाइक दैट, बहुत आसान है, मैंने बोला। बस आप कहां पे कंफ्यूज होगे, जहां पे आपको ध्यान रखना है, जब आप इस लूप को रन कर रहे होगे, व्हेन यू आर ट्राइंग टू रन दिस लूप, दिस जस्ट फॉरगेट अबाउट द आउटर लूप। जब आपका काउंटर 0 है तो आप मान के चलो अभी यहाँ पे आए हो, स्टेप 3 को रन कर रहे हो काउंटर 0 के लिए। जब इसको रन करोगे तो ध्यान रखना ये आपका स्टेप 1 है, ये स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। और जब इसको आप 2 बार रन करोगे तो 2 बार रन करने के लिए ये वाला स्टेप कितनी बार रन होगा, केवल 1 बार, बिकॉज स्टेप 1 ऑलवेज रन्स ओनली वन। वन टाइम। तो आपको मैंने क्यों बोला आप इसको ध्यान रखना, अगर आपने इसको ध्यान रखा तो आप बार बार कंफ्यूज जाओगे। इसको रन करते वक्त आप ध्यान रखोगे कि ये स्टेप 1 एक बार रन होगा, तो अपने आप क्या होगा, व्हेन द वैल्यू ऑफ आई विल 0 इट विल रन वंस, एक बार ये रन करेगा। तो एक बार रन करेगा मतलब इंटरनली लॉर्ड कितनी बार रन करेगा, 2 बार। व्हेन द वैल्यू ऑफ आई विल 1 इट विल अगेन रन 2 टाइम्स, यस और नो। यस। यस, तो ऐसे करोगे तो आपका व्हाटएवर योर कैलकुलेशन यू हैव टेल मी दैट विल बी गेटिंग माय पॉइंट। तो ये मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, दिस इज योर असाइनमेंट एंड यू हैव टू ट्राई इट ऑन योर ओन मशीन, और आप इसको रन करके दे। गेटिंग माय पॉइंट। यस। तो इसको करने से ट्रस्ट मी व्हाट विल हैपन, आई कैन अश्योर यू कि आपको कोई भी लाइफ में कोई भी लूप मिल जाए, यू विल नेवर फॉल। ठीक है, चलिए अभी व्हाट्सएप इज नॉट ओपन सो आई विल शेयर यू सेपरेटली। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है। यस, यस। तो अब इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स हो जाए उससे डजंट मैटर, यू हैव टू फॉलो वन थिंग, स्टेप 1 2 3 4 एंड 3 will you can say step 1 only execute once। getting my point। यस। चलो अब मैं आपको बताता Yes. हूं द अनदर टाइप ऑफ लूप दैट इज कॉल्ड while। अब देखिए एक बार आपने यू हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर लूप, अदर लूप्स विल बी इजी, बिकॉज व्हाट इज द थिंग इज देयर, एवरीथिंग इज सेम। अगर किसी लूप को रन करना है तो काम तो वही होंगे ना, काउंटर चाहिए होगा, यू नीड अ काउंटर, you need a condition, you need an Yes. increment decrement and you need a body which you want to execute multiple times। चीजें तो वही चाहिए, yes or no। केवल Yes. लिखने का तरीका बदल जाएगा। तो नाउ द थिंग इज सेम, यू विल सी, मैं वही काम देखो वन बाय वन आई कैन शो यू इन द मेन फंक्शन। आई एम राइटिंग दिस कोड, मैंने कोड लिखा, इसको 5 बार रन करना था, आई रैप इन ए ब्लॉक, यस और नो। देखो कितना आसानी से लगेगा आपको, रैप कर दिया, यस और नो। Yes. यहाँ पे वेयर इन दैट केस आई वाज यूजिंग द फॉर लूप, यहाँ पे व्हाइल लूप का क्या सिंटैक्स है, WHILE व्हाइल एंड यू हैव टू राइट ए ब्रैकेट। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, इन द व्हाइल लूप इन दिस ब्रैकेट द सिंटैक्स सेज दैट यू कैन ओनली प्रोवाइड द कंडीशन, यू कैन ओनली प्रोवाइड द कंडीशन। Sure. अब देखो इसमें क्या है, वो ये बोलते हैं व्हाइल लूप में कि यहाँ पे यू हैव ए ऑप्शन दैट इन दिस ब्रैकेट यू हैव टू, योर सिंटैक्स वाज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स एंड one part was the in declaration and initialization, second was condition, third was you can say increment decrement, and this is obvious the body part। but here they are saying that I will do the same thing but I will provide you the place to give the condition। तो चलो आपको एक एग्जांपल लेते हैं, इसी को अगर मैं करता क्या, तो मैं काउंटर को कंडीशन में डाल देता, यस और नो, यस और नो। Yes. अब बात ये आती है, काउंटर मैंने डाल तो दिया लेकिन एक काउंटर तो पूछेगा ना, इन दिस प्रोग्राम व्हाट इट विल आस्क, आई डू नॉट नो व्हाट यू आर, बिकॉज काउंटर कोई वेरिएबल है, क्या है, कहीं तो डिक्लेयर किया नहीं, यस और नो। Yes. Yes. So in the syntax of while loop, actually the counter is declared, or you can say this step 1 is actually not part of your while loop। इसको आप कहां देते हो, अपने while loop के पहले एज ए सेपरेट इंस्ट्रक्शन। तो देखो मैंने क्या किया, आप while loop स्टार्ट होने से पहले एक काउंटर वेरिएबल अलग खुद से बना लो। गेटिंग माय पॉइंट, गेटिंग माय पॉइंट। तो Yes. केवल उसका जो जगह है, द प्लेस ऑफ गिविंग द सिंटैक्स इज चेंज। व्हाइल लूप ने बोला हम आपको कंडीशन के लिए जगह देंगे, हमने बोला ठीक है तो हम वेरिएबल डिक्लेयर कार्य करेंगे जस्ट बिफोर द व्हाइल लूप, जस्ट लाइक ए सेपरेट इंस्ट्रक्शन, यस और नो, है ना। Yes. व्हाइल लूप चलाने से पहले मैंने काउंटर वेरिएबल बना दिया जिसको यूज कर लिया। सो नाउ दिस इज अचीव, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, कंडीशन पास इज आल्सो अचीव एंड बॉडी वी हैव ऑलरेडी हियर, यस और नो। ओनली थिंग इज Yes. लेफ्ट,
ओनली थिंग इज लेफ्ट Increment, decrement. इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए भी जगह नहीं देता है, तो द बेसिक रूल इज नॉट द हार्ड एंड फास्ट, द बेसिक रूल इज दैट within the body, when you have executed, when you have written all the instruction, the last instruction should be the increment decrement. Are you Increment, getting my decrement. point? I'm saying that Yes. this is not hard coded, hard rule, it is not a hard rule, लेकिन एक सिंटेक्स बना रखा है। तो आपने देखा क्या फॉर लूप और व्हाइल लूप में कोई डिफरेंस है? ओनली द डिफरेंस इज दैट यू हैव डिफरेंट प्लेसेस टू गिव द सिंटेक्स। यस और नो? आप देखो मैं इसको रन करूंगा, ये अभी 5 बार ही चलेगा। इट इज रनिंग 5 टाइम्स। Yes. तो यहाँ पे केवल डिफरेंस क्या हुआ? The only the difference in the syntax part, and due to the syntax you can see that this, and again it is behaving something like the for loop. ये मैंने एक सेपरेट लिखा है, तो अगर मैं स्टेप 1 मानूं तो ये एक ही बार चलेगा ही। यस और नो? क्योंकि इट इज अ सेपरेट इंस्ट्रक्शन। यस और नो? Yes, yes. तो ये Yes. तो एक ही बार चलेगा। नाउ दिस कंडीशन, it is, you can assume that this is step, what you want to say step 1 2 whatever you want to say, I will say step 2, है ना? मैं इसको step 2 मान लेता हूं। So this is step 1, that is not directly the part of while loop. Step 2 is the condition part. अब step 3 क्या होता था आपका? होता था body. So this is the whole body, step 3. Yes or no? Getting my point? ये body पूरी क्या हो गई? Step 3. And within the body, the last instruction should work as a Increment. increment decrement, and you can assume that it is step 4. Oh. ठीक है? तो केवल चेंजेस हो गए हैं, ओनली द सिंटेक्स पार्ट इज, अदरवाइज रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। अब देखो कंडीशन स्टेप वहां पे यहाँ था, इट इज रिटन आउटसाइड द लूप, और फॉर लूप में उसने इसको डिफाइन कैसे किया? इट इज द प्लेस बट इट विल रन ओनली वंस। और यहाँ पे तो क्या होता है? ये एक सेपरेट इंस्ट्रक्शन है तो रन ही एक बार होगा। यस और नो? ये तो एक सेपरेट इंस्ट्रक्शन है, इट विल रन ओनली वंस। नाउ यू विल सी कैसे लूप चलता है। कंट्रोल विल फर्स्ट ऑफ ऑल द काउंटर वैल्यू 0, come to the while loop, counter is less than 5, true or false? True. True. So True. it will go to the body part. So in body, what is written? Lord, and the Lord. counter value is incremented by Plus, Increment. plus 1. yes. So One. now if it is condition true, then it will go to the फिर step 2 पे आएगा। Now the value of counter is 1, 1 is less than equal to 5, yes, again it will execute, counter value becomes Yes. 2. So ये True. ऐसे रन करता जाएगा, and when the value of counter will become 5, it will false, and your control will come out of the loop, and you can say in the next line. Getting my point? Yes. Yes. So now you can tell me, क्या for loop और while loop में कहीं भी कोई difference लगा? Only the thing is that they have given a syntax, है ना? और ऐसा क्यों किया? I will tell you. Sometimes what happens, हो सकता है ये जो आपको कंडीशन का जो वेरिएबल है इन द फॉर लूप, बिकॉज यू आर डिफाइनिंग द फॉर लूप, सो यू आर ट्राइंग टू डिक्लेयर इट। गेटिंग माय पॉइंट? आप डिक्लेयर कर रहे हो बिकॉज यू आर डिसाइडिंग that I will create a counter for you, but in for loop what happens, it has only given you condition part. इसका मतलब इसका जो counter होता है मोस्टली तब while loop यूज करना चाहिए when counter variable is coming something from some different functions or some different place. Getting my point? जब ये काउंटर वेरिएबल किसी और जगह से आ रहा हो, आपने देखा ये कहां से आ रहा है? एक कोई सेपरेट इंस्ट्रक्शन होगा कहीं पे भी। गेटिंग माय पॉइंट? सो माय while loop is only just running the program on the basis of that counter variable. He is not declaring the counter. So now the main difference is that when you know that when the counter will start, and indirectly you can say you know the how many times the counter will run, you will use for loop. And when you do not know how many times the loop will run, you should use the while loop, जहां पे आपको काउंटर की कंडीशन तो पता है बट यू आर नॉट डिसाइडिंग द इनिशियल वैल्यू। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए ये हो गया आपका while loop. Now there is one other loop comes into the picture, that is called do while. Anybody have any doubt? You can ask me. Yes sir. सर आपको आवाज आ रही है मेरी? Yes, I am able to hear you. Tell me. अभी जो आपने बोला कि जब आपको कंडीशन नहीं पता हो देन यू शुड यूज व्हाइल लूप, मतलब इनिशियल कंडीशन, तो इनिशियल कंडीशन तो यहाँ भी हम मतलब int counter इक्वल टू 0 डिफाइन कर रहे हैं ना, मतलब डिक्लेयर कर रहे हैं ना। आई एम सेइंग दैट कि यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ये while loop का सिंटेक्स का पार्ट नहीं है। मे बी यू कैन डू वन थिंग, कोई आपको ये बोल सकता है कि कोई एक वेरिएबल दैट विल कम, काउंटर वेरिएबल जो है इसकी वैल्यू कोई और डिसाइड कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? somebody else is deciding the counter variable. तो उस केस में आपको ये यूज करना चाहिए। चलिए आई कैन गिव द एग्जांपल आंसर। फॉर एग्जांपल एक लेते हैं क्या,
एक वेरिएबल लेता है int a. ओके, टेक द एग्जांपल कि यहाँ पे जो a है दैट इज द इनपुट गिवन बाय समबडी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक वेरिएबल है जिसका इनपुट कोई क्या दे रहा है, कोई और दे रहा है. यू कैन टेक नॉट टेक द एग्जांपल ऑफ a, आप काउंटर का ही ले लो. काउंटर का जो इनिशियलाइजेशन हो रहा है दैट इज डिसाइडेड बाय यू, दैट इज डिसाइडेड बाय द सम यूजर. गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, चलिए मैं आपको करके भी दिखाता हूं. हियर आई विल कवर वन मोर टॉपिक, कैसे यूजर से इनपुट लेते हैं. यहाँ पे काउंटर की वैल्यू 0 दे रहा हूं, प्रोग्राम में हमेशा वैल्यू इसकी 0 चलेगी. यस और नो? हाँ जी, यस और नो? अब देखिए, Yes. आप चाहो तो यूजर से इनपुट ले सकते हो. नाउ इट इज नॉट वेरी वेरी पॉपुलर. रीजन इज दैट नाउ एवरी सॉफ्टवेयर विच इज डिजाइंड और अवेलेबल इन द मार्केट दैट ऑलवेज यूज अ यूआई फॉर टेकिंग द इनपुट फ्रॉम द यूजर. आपको कोई नंबर का इनपुट देना है तो आपको यूआई पे एक इनपुट की टेक्स्ट फील्ड मिलती है. यस और नो? Yes. तो आजकल ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन पहले जब था ना प्रोग्राम, व्हेन प्रोग्राम वर डिजाइन लाइक द वो डॉस के प्रोग्राम बनते, तो ये यूजर इनपुट लेने का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था, कमांड प्रॉम्प्ट समथिंग लाइक दैट. सो आई विल शो यू कि अगर आप उसको देखना चाहो तो देयर इज अ क्लास इन जावा दैट इज कॉल्ड स्कैनर. जावा में एक क्लास होती है, इसका क्या नाम है? स्कैनर. Scanner. And scanner, you have to create an object a scanner equal to new scanner, and what you have to write in the scanner, you have to write some program that is called system dot in. ठीक है, आपको यहाँ पे इन लिखना, एंड इट इज वेरी वेरी यू कैन से, कोई बता सकता है यहाँ पे सिस्टम इन क्यों लिख रहा है? कहीं पे भी आपने कुछ ऐसा सिस्टम डॉट प्रोग्राम देखा अपने प्रोग्राम में? यू हैव लर्न एनीथिंग जहाँ पे अपने सिस्टम नाम की क्लास को यूज किया हो? इन द सेम प्रोग्राम आर यू एबल टू सी सिस्टम डॉट Out. Dot println. तो सिस्टम डॉट आउट क्या करता है? whenever you are writing Print. something in the system out, it is actually printing on your console. इसको क्या बोलते हैं? कंसोल. Console. तो इसका मतलब सिस्टम डॉट इन का मतलब पता है क्या होता है? व्हेन यू आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम द कंसोल. सिस्टम आउट मतलब कंसोल को कुछ दे रहे हो, एंड सिस्टम डॉट इन मींस यू आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम द कंसोल. तो जब आप इनपुट लेते हो तो आप बोलोगे सिस्टम डॉट इन, और जब आउटपुट देते हो तो बोलते हो सिस्टम डॉट आउट. गेटिंग माय पॉइंट? तो ये क्या करता है स्कैनर क्लास? इट इज एक्चुअली क्रिएट a connection from your console, and whatever you will enter into your console that will be considered as a input. अब होता कैसे? ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इन स्कैनर there is a function that is called scanner dot next int. ऐसे बहुत सारे होते हैं, इसमें one is int. Int means whatever input you are giving from the console that will be considered as a input, as a integer value. इंटीजर वैल्यू. तो देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे काउंटर इक्वल टू 0 मैं ये नहीं लिख रहा हूं, मैं क्या लिखूंगा? काउंटर इक्वल टू राइटिंग दिस वन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes. तो ये क्या करेगा? आई विल टेल यू वन थिंग. ये क्या करेगा, जब भी आप अपने प्रोग्राम को रन करोगे तो कंसोल पे जो भी वैल्यू दोगे दैट विल बी स्टोर्ड इन ए काउंटर. यस और नो? एंड दैट काउंटर विल यूज्ड इन द व्हाइल लूप. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं एक्चुअली इसको डिक्लेयर करने के लिए ये एक यूजर से लिया जा रहा है. Are you getting my point? And the way of giving the input from the user can be different. I have used the scanner class. They can use the some UI for that. है ना? वो कोई UI बना, आजकल तो UI का ट्रेंड ना, इनपुट टेक्स्ट फील्ड दो, यूजर नेम डालो, पासवर्ड डालो. Yes or no? Yes. तो यहाँ पे देखो, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ. Just see what will happen in the console. कंसोल में my cursor will blink. देखो मैंने यहाँ रखा है, मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है. Yes. अब देखो मैं काउंटर की वैल्यू आपके सामने क्या देता हूँ 3. And just see how many times program is running. How many times Lord is printed? 2 times. क्यों प्रिंट हुआ? काउंटर की वैल्यू was 3. So now tell me, counter value is 3. So how many times loop will run? 3 से स्टार्ट होगा और 5 तक रन करना है, तो 2 ही बार रन हुआ. Yes or no? Yes. Yes. Okay. So who asked this question that in the while loop how we are considering that you can say the variable is declared by some other part of the program? Who asked this thing? Sir, Shreyas here. Yes, yes. In for loop also we can say I equal to counter and like like I equal to counter, I less Yes. than equal to 5, I plus plus. Okay, that's why I'm saying that you can do one thing. But the thing is that now here, tell me one thing. When the person who is designing the while loop, उस while loop के अंदर यहाँ पे कहीं डिक्लेरेशन का काम उसने नहीं किया. I can tell you कि हम अचीव तो दोनों कर सकते हैं. Are you getting my point? हम अचीव तो कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या ये काम किया गया है जो यहाँ पे इनपुट लेने का किया गया है? नहीं.
दैट इज नॉट पार्ट ऑफ अ लूप, यस और नो। लेकिन अगर Oh. मैं ये काम करता तो ये काम आप मुझे बताओ वेयर आई शुड राइट दिस कोड, ये कोड क्या मुझे यहाँ पे नहीं लिखना पड़ता इस फॉर लूप के इस पार्ट में, दैट इज द पार्ट ऑफ द सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप, यस और नो। तो इसका मतलब जो लूप बनाने वाला है उसको यहाँ पे पहले से पता है कि कोई इनपुट या समथिंग इट विल बी टेकन, इट विल बी कंसीडर्ड एज ए इनपुट, समथिंग लाइक दैट, यस और नो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो। Yes, 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 I got it. कि यहाँ पे इस लूप के अंदर आपने कोडिंग, आप ऐसे मान के चलो लूप की कोडिंग करने वाला लूप जो बंदा है ही इज द यूजर, है ना। तो जो यूजर है अगर उसके अंदर वो खुद लिख रहा है तो उसको पता होगा, लेकिन क्या यहाँ पे यूजर को पता है, उसको सिर्फ ये पता है कि काउंटर में जो होगा उस पर मुझे चलाना है, वो काउंटर आ कैसे रहा है इट डजंट मैटर। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। नहीं तो एक चीज तो है, मैं आपको एक असाइनमेंट देने वाला हूं एंड देन असाइनमेंट विल प्रूव दैट यू कैन यूज फॉर लूप, while loop and another type of loop and you can achieve the same thing, ठीक है। आपको एक एग्जांपल दूंगा जिसमें आपको करना ही यही है and that is called the logic। लेकिन ये होता है ना, देखो जैसे again I've given example कि you have to achieve a same task you have different ways, है ना। बहुत अच्छा एग्जांपल जो मैं किचन का देता हूँ कि क्या कर सकते हैं हम, सर्विंग स्पून से भी खाना खा सकते हैं ना। अब घर में कभी नहीं मिलता है, लड़के क्या करते हैं, दे डोंट ट्राई कि हम चलो कुछ यूटेंसिल धो लें, वो क्या करते हैं, चलो कुछ नहीं मिला मम्मी से बोला इस जो है सर्विंग स्पून से ही खा लेंगे, वो नॉर्मल स्पून की जरूरत नहीं, क्यों, हम धोना नहीं चाहते। सो व्हाट ही हैज, बट नाउ टेल मी वन थिंग, दैट इज द बेस्ट वे टू अचीव दैट, कि हमें उसको खाने के लिए सर्विंग स्पून का यूज करना चाहिए और वी शुड यूज द टी स्पून, समथिंग लाइक दैट, यस और नो। Yes. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है, काम तो मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ जी बताइए सर, मतलब ये फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन तो मस्ट हो गया ना, मतलब अगर हम फॉर लूप में जो इनिशियलाइजेशन वाला सिंटेक्स है ये तो मस्ट है। यहाँ पे हम इट इज ऑल्सो नॉट मस्ट, बट द थिंग इज दैट, आपको देखो यहाँ पे मैंने क्या, इस लूप को मैं आपके सामने एक बार और रन करके दिखाता हूँ। दैट इज वेरी, आई एम रियली हैप्पी दैट यू आर आस्किंग गुड क्वेश्चंस, है ना। देखो अब मैं आपको एक अचीव इंटरेस्टिंग चीज और करके दिखाता हूँ। आई एम रनिंग दिस प्रोग्राम, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर लूप 5 बार प्रिंट किया, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, हाँ जी, यस और नो, अभी से यस और नो, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। यस यस हाँ, जिसने पूछा था वो बताएगा पहले, हु आस्क्ड दिस थिंग, सर, राबिया। Rabia. Rabia, this is really good question. Now the thing is that, tell me one thing. यहाँ पे काउंटर वेरिएबल को मैंने कहाँ डिक्लेयर किया, बिकॉज फॉर लूप प्रोवाइड अ स्पेसिफिक प्लेस फॉर दैट, यस और नो, है ना। फॉर लूप ने हमें एक स्पेशल जगह दी है ना ये काम करने के लिए। लेकिन देखो मैं चाहूं तो देखो कंट्रोल एक्स और इसे क्या करता हूं, एक सेपरेट इंस्ट्रक्शन की तरह भी कर सकता हूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता, यस और नो। मैंने क्या किया, अब भी 5 बार चल रहा है, मैंने बस क्या किया, फॉर लूप ने जो मुझे जगह दी थी मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। गेटिंग माय पॉइंट, सुकेश यू आर गेटिंग। तो आपको ऐसा ही सिंटेक्स लिखना पड़ेगा, मतलब ब्लैंक रख के सेमीकोलन डालना। हाँ जी बिल्कुल करना पड़ेगा, एंड दैट इज नॉट द बेस्ट अप्रोच, क्योंकि देखो क्या है, कोई आपको जगह दे रहा है लिखने के लिए, फिर भी आप क्या कर रहे हो, बाहर लिख रहे हो, ठीक है। तो उसने जगह दी है आपको, दैट इज अ पार्ट ऑफ सिंटेक्स। आप अचीव तो देखो कर लोगे, क्योंकि देखो क्या है, सेम थिंग इज दैट दिस स्टेप इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूट ओनली वंस एंड यू हैव राइट इट रिटन एज ए सेपरेट इंस्ट्रक्शन। तो काम तो अब भी कर रहा है वो, लेकिन क्या है, आपने सिंटेक्स, अगर आपको यही करना था तो इट इज द बेस्ट प्लेस टू यूज द व्हाइल लूप, है कि नहीं। While loop. Yes. सही कह रहा हूं, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर आपको देखो, अब मैं आपको बताता हूं, देखो और इंटरेस्टिंग चीज, अगेन आई एम सेइंग दैट बट इट इज रियली वेरी गुड क्वेश्चन, क्लैपिंग फॉर यू। रीजन इज दैट जब आप ऐसे सीखते हो तभी देन यू विल लर्न द लॉजिकल पार्ट, इसी को तो लॉजिक बोलते हैं। अब देखो अगर मैं काउंटर यहां ना रखूं तो क्या काउंटर में उठा के यहां नहीं रख सकता था, ये देखो, यस और नो। Yes. देखो अब ये Yes. अब भी व्हाइल लूप की तरह काम करेगा और आपका पार्ट चलेगा, बट ओनली थिंग इज दैट, फिर से मैंने वही एग्जांपल दिया, आपके पास टी स्पून भी है, आपके पास सर्विंग स्पून भी है, खाना आप कैसे खाना चाहते हो यू डिसाइडेड, खाना तो दोनों से खा लेंगे, यस और नो। लेकिन जब टी स्पून से खाएंगे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, और जब सर्विंग स्पून से खाएंगे पीपल विल स्टार्ट लाफिंग, है ना, काम तो हमारा हो जाएगा, यस और नो। Yes. हाँ जी सही कह रहा हूं। तो देखो इसमें फॉर लूप की जगह व्हाइल लूप नहीं बन गया, क्या बचा इस फॉर लूप में, केवल कंडीशन ही तो बची, यस और नो। बाकी सब तो मैंने यही लिख दिया, यस और नो। हाँ जी Yes. यस।
तो आपको क्या करना है, दे हैव गिवन दिस थिंग, तो जिसको जिस तरह से यूज करना है आप वैसे करो, नहीं तो अगेन आई एम सेइंग दैट मैं आपको एक असाइनमेंट देने वाला हूं, आई एम गिविंग द असाइनमेंट, ठीक है, चलो आपको फिर बताता हूं, एक असाइनमेंट देता हूं एंड देन दिस टाइम असाइनमेंट विल प्रूव बाय योरसेल्फ दैट यू कैन अचीव एनीथिंग विद एनी टाइप ऑफ लूप। देखो आपको असाइनमेंट में क्या करना है, आपको मुझे मेरे लिए टेबल प्रिंट करना है, लेकिन टेबल प्रिंट कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। टेबल वैसे ही प्रिंट करना है, यू हैव टू प्रिंट द टेबल दैट इज प्रिंटेड जैसे हम अपने बचपन में पढ़ते थे, 2 का टेबल 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2, ये प्रिंट होके आना चाहिए। 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4, और ऐसे प्रिंट होके कब तक आए मेरे लिए, 2 10 जा 20, और ये टेबल आपको मेरे प्रिंट करनी है। यहाँ पे सिर्फ आपको एक देता हूं, द नंबर विच यू हैव टू प्रिंट, आपको जिस भी टेबल का नंबर प्रिंट करना है उसको एक वेरिएबल में आप स्टोर करोगे, दैट इज यू कैन टेक इनपुट n। अगर मैं n में 2 दूं तो मुझे किसकी टेबल प्रिंट कर दे, 2 की। अगर n में मैं 3 दूं, सो एक्चुअली यू हैव टू प्रिंट द टेबल फॉर नंबर n। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको टेबल प्रिंट करनी है, और ये टेबल आपको प्रिंट करनी है मेरे लिए फॉर लूप से, व्हाइल लूप से, और जो मैं अगला पढ़ाने वाला हूं डू व्हाइल लूप्स। गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो आप देखोगे कि आप तीनों से अचीव कर लोगे, बट द थिंग इज दैट वे ऑफ राइटिंग द कोडिंग, कंडीशनल स्टेटमेंट, बॉडी, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट, दोनों का सिंटेक्स अलग हो जाएगा। ओनली एक्चुअली द डिफरेंस व्हेन यू टॉक अबाउट द डिफरेंस इन लूप, द मेन डिफरेंस इन द लूप इज व्हाइल एंड डू व्हाइल। लूप, फॉर लूप और व्हाइल लूप में सिर्फ सिंटेक्स का डिफरेंस होता है, एक्चुअल जो डिफरेंस होता है दैट इज इन द व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। अब देखो डू व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है, मैं हमेशा whenever I will talk about the syntax मैं हमेशा बोलता हूं, हमेशा always start the coding from the statement। जब आप ऐसे करते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग, your understanding will be clear। ये मेरा स्टेटमेंट होता है, I always try to wrap in a block। एक बार आप सीख जाओगे फिर तो आप ऐसे रिवर्स कोडिंग नहीं करोगे। पहले क्या लिखोगे, फॉर, गेटिंग माय पॉइंट, ये लिख दिया मैंने, यस और नो। अब मुझे यहाँ पे लूप लगाना है, आई हैव लूप, क्या आई कैन राइट द इफ स्टेटमेंट, आई कैन राइट लूप, मैं बहुत कुछ लिख सकता हूँ उसमें, आई कैन कन्वर्ट इट फंक्शन ऑल्सो। मैंने बताया ना फंक्शन में भी क्या होगा, फंक्शन की तरह काम करेगा। सो आई वांट टू मेक अ लूप एंड नाउ दिस टाइम आई एम यूजिंग अ लूप दैट इज कॉल्ड डू व्हाइल। सो डू सेज दैट राइट डू हियर एंड यू हैव टू राइट अ व्हाइल कीवर्ड after completing the body, while, while, and here the bracket is written, and in this bracket you have to write the condition part। इस ब्रैकेट में क्या लिखना है आपको, कंडीशन। तो कंडीशन फिर से कॉपी कर लो, चलो ये लो, कॉपी कर ली कंडीशन, condition is good, but the now question is that they have given me only the place to give the condition where I will declare the variable, tell me। Before do। Aji, before or you can say out of the loop। लूप से सबसे पहले हम पहला यही काम करेंगे। अब नहीं दिए तो कर रहा कहाँ है, बाहर करना है। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, यस और नो? यस। अब बात आती है इफ आई विल रन इट, इट विल गो इनटू द इनफाइनाइट लूप, क्योंकि अभी हमने कौन सा काम नहीं किया, इंक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट कहाँ करेंगे, सिंपल सी बात है, इसने नहीं दिया तो इंक्रीमेंट आई विल डू विद इन द बॉडी, और कोई जगह ही नहीं बचती है ना। कोई चीज बार बार कब रन करेगी, जब बॉडी में दोगे, है ना, या तो उसके लिए सेपरेट प्लेस होता, अदरवाइज इट शुड बी द पार्ट ऑफ बॉडी। मैंने क्या किया, ये जो आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट था दैट आई हैव रिटन इन द बॉडी, जस्ट सी हियर। गॉट इट, गॉट द पॉइंट? यस। देखो ये प्रोग्राम अपने आप फिर से रन करेगा, जो आप चाह रहे थे, देखो रन करेगा, रन कर रहा है 5 बार। यस। Now the only the difference is that in while and do while loop, the syntax says that you will see here the syntax start from the condition, yes or no। पहले condition आता है फिर body का part आता है, yes or no। और यहाँ पे what in while loop happens, you will see here I am writing the syntax, you will see step 1, इसको step 1 बोलोगे, yes or no। आप इसको step 1 बोलोगे, that is okay। यहाँ पे मजबूरी है, इसको क्या बोलना पड़ेगा, body को step 2। Getting my point? And then we will come to the condition part, and this condition part you can say, or you can say आप अगर चाहो तो इसको स्टेप 2 ये बोलो, या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसको बोलना चाहो तो उसके ऊपर भी चाहो तो लिख दो, डोंट वरी, यू कैन राइट इट स्टेप 3 and here you can write step condition part step 4। Getting my point? कंडीशन बाद में चेक करें तो एक बार तो रन होगा ही, मतलब यस। हाँ जी श्रेयस हियर,
अभी कंडीशन हमने एंड में लिखा, तो वो एक बार अगर कंडीशन फॉल्स भी हो रही तो लेकिन एक बार तो रन होगा ही है। So that's why clapping for you. That is the difference. Only the difference is that because here in the while loop, the loops start from the conditional part. So first, in the first place, it will check the condition, then will go to the body part. यहाँ पे क्या होगा? Because the starting is from the body, so first it will execute from the body part and then will go to the condition. Getting my point? तो यहाँ पे एक डिफरेंस क्या होता है कि अगर आपका कोई सिनेरियो दिया जाए, दैट सेम सिनेरियो गिवन इन द व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, बट इन द डू व्हाइल लूप वन थिंग इज श्योर दैट वंस द बॉडी विल रन्स, एक बार तो बॉडी रन होगी ही। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए मैं आपको प्रूफ, हाँ मैं आपको प्रूफ भी करता हूं। इक्वल टू 0 किया तो भी रन होगा वो। नहीं मैं आपको देखो देता हूं, काउंटर की वैल्यू लेस देन क्या थी, 5 होनी चाहिए थे। आई एम गोइंग टू मेक इट, क्या ये कंडीशन ट्रू होगी? कंडीशन ट्रू तो नहीं, लेकिन इस प्रोग्राम को रन करता हूं, बट यू विल सी दिस प्रोग्राम विल प्रिंट लॉर्ड वंस। क्यों प्रिंट करेगा? द काउंटर इज वैल्यू 6, इज इट ओके? कंट्रोल विल गो टू द स्टेप 2, इट विल रन द बॉडी, बॉडी में जाएगा, लॉर्ड को प्रिंट करेगा, देन इंक्रीमेंट द वैल्यू एंड देन विल गो टू द कंडीशन पार्ट। यस और नो? और कंडीशन पार्ट गया तो नेक्स्ट टाइम इट विल नॉट कम टू द स्टेप 2। लेकिन अगर यही कंडीशन मैं डू यहाँ पे करता, जस्ट ट्राई टू मेक इट, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस काउंटर को उठा के क्या करता हूँ, 6 करता हूँ। अब देखना क्या होगा, यहाँ इस स्कैनर को हटा देता हूँ, नॉट टेकिंग द लूप। अच्छा ये चीज आपको लेकिन इंटरव्यू में पूछी जाएगी, यू कैन टेल मी, यू कैन टेल द पर्सन दैट हाउ यू कैन टेक द इनपुट फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट यूजिंग स्कैनर क्लास। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें ऐसे मैं बीच में बताता रहता हूँ एंड यू हैव टू फोकस ऑन दैट। यहाँ पे देखो एक बार भी प्रिंट हुआ नहीं। आप इस प्रोग्राम और इस प्रोग्राम में कोई डिफरेंस नहीं है। यू वांट टू सी इट, जस्ट सी हियर, ओनली द डिफरेंस इज दैट in the syntax of while loop your program starts from the conditional part, so if the condition is true it will go to the loop, otherwise it will not go to the body part, not even the single time. But in the do while loop, because it is start from the you can say body part, so it will run, at least it will run once irrespective of that your condition is true or false. इसीलिए देखो इसका नाम भी बहुत अच्छा रखा गया है। इसका नाम do while क्यों रखा गया है? do मतलब पहले करो और while मतलब कब तक। गेटिंग माय पॉइंट? जावा ने बहुत ब्यूटीफुल चीज किया। जावा आई एम रियली फैन ऑफ, मैं इसलिए जावा को नहीं पसंद करता हूं बिकॉज आई नो जावा, आई नो जावा, आई ऑल्सो वर्क ऑन C#, आई ऑल्सो वर्क ऑन द पाइथन। लेकिन मुझे जावा इसलिए पसंद आती है बिकॉज जावा वाज द, यू कैन से, आई ऑलवेज ट्राई टू से दैट जावा इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। वैसे लोग सी को बोलते हैं, लेकिन बट आफ्टर सी इफ समबडी आस्किंग व्हाई जावा इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज, क्योंकि जावा ने हर चीज को क्या किया है, जितना भी मीनिंगफुल हो सकता है उसको मीनिंगफुल बनाया। यू कैन ट्राई, आपको कोई चीज ज्यादा रटने की जरूरत नहीं पड़ती इफ यू फोकस ऑन ईच एंड एवरी टर्म। ठीक है, अब देखो कितना आसान है, कोई पूछेगा डिफरेंस भूल जाते हैं लोग। मैंने इंटरव्यू में सेवरल टाइम्स आस्क्ड पीपल जस्ट फॉरगेट द डिफरेंस। मैं उनको एक बात बोलता हूँ इंटरव्यू में, आई ऑलवेज ट्राई टू गिव द आंसर इन द इंटरव्यू आल्सो, कि आप देखो कैसे याद रखो, व्हाइल का मतलब जिसमें कहां से स्टार्ट हो, कंडीशन से, और डू व्हाइल का मतलब जिसमें कहां से स्टार्ट हो, बॉडी से। तो डू व्हाइल का मतलब इट विल रन एटलीस्ट वंस। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस सर। तो अब देखो आपका जो सो व्हाट प्रोग्राम यू हैव टू राइट फॉर मी, दैट यू हैव टू राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट अ टेबल। तो फॉर लूप मैं आपको बना के देता हूँ, फॉर लूप मैं आपके लिए ट्राई करके बताता हूँ बिकॉज वी विल लर्न सो मेनी अदर थिंग्स। चलिए अब देखो क्या करते हैं। सबसे पहले व्हेन यू आर ट्राई टू, इफ यू आर नॉट टॉकिंग यू कैन बी ऑन म्यूट, आई एम एबल टू there is some background noise, please be on mute, there's some background noise. Okay, चलिए मैं आपको प्रोग्राम बनाता हूँ। अब प्रोग्राम बनाते वक्त ध्यान रखना है, you have to understand this thing whenever you try to write a program। क्यों बोलते हैं, क्यों आपसे प्रोग्राम की वो डिमांड करते हैं इंटरव्यूअर? क्योंकि प्रोग्राम विल डिसाइड दैट हाउ मच योर लॉजिकल स्किल्स आर डेवलप्ड, कितनी आपकी लॉजिकल स्किल डेवलप करती है। तो हम क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखते वक्त पहली फॉर लूप लिख देते हैं, पहली वो लिख देते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या दिया है, आपकी प्रिंटिंग होनी चाहिए। कैसे प्रिंटिंग होनी चाहिए थी, कैसे बोला था मैंने? जो नंबर है वो होना चाहिए, फिर स्टार प्रिंट होना चाहिए, फिर 1 प्रिंट होना चाहिए एंड देन इक्वल टू 2, है ना? फिर अगली लाइन में क्या प्रिंट होना चाहिए, नंबर, 2 मींस नंबर, दिस वन 2 इक्वल टू 4। यस और नो? यस। अब आपको सबसे पहले देखना है कि एक्चुअल दिस इज द बॉडी, ये मेरी वो बॉडी है जो प्रिंट होनी है। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर मैं इस पूरी बॉडी को ऐसे ही हार्ड कोडेड यहाँ पे लिख दूंगा, इफ आई ट्राई टू राइट इट हियर, तो ये तो हमेशा क्या प्रिंट करेगा, 2 × 1 = 2 हमेशा प्रिंट करेगा। yes. लेकिन मुझे क्या प्रिंट करना था, दिस 2 इज नॉट एक्चुअली 2, दिस इज n,
जो नंबर है वही तो है। तो देखो इसको 2 को इस ब्रैकेट से बाहर निकालो, ये हार्ड कोडेड नहीं है। तो देखो करना क्या चाहिए, इस 2 की जगह, इस पहली बात तो इस 2 को यहां से हटाओ, ये जो ब्रैकेट है ये लगना चाहिए था स्टार के पहले। गेटिंग माय पॉइंट? और ये 2 बन जाएगा आपका n, तो उसको लिखो n। जब भी कोई वेरिएबल होता है ऐसे लिखते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अभी क्या प्रिंट होगा, जो भी n नंबर है वो उसके साथ हार्ड कोडेड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का सिंबल आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ रहे हो? अब देखो ध्यान से देखना, ये मल्टीप्लाई का सिंबल तो आपको हार्ड कोडेड चाहिए था, लेकिन ये 1 क्या है, पहली बार ये 1 होगा, अगली बार क्या 2 होगा, तो ये काउंटर होगा। तो क्या यहाँ पे ये 1 हार्ड कोडेड होना चाहिए? नहीं, ये भी क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए जिसकी वैल्यू क्या हो, इट शुड कीप ऑन चेंजिंग। तो देखो इसका मतलब ये 1 भी हार्ड कोडेड नहीं होना चाहिए। तो क्या करो, इस 1 को भी बाहर निकालो, इस स्टार को यहाँ पे ब्रैकेट करके अलग कर दो और इस 1 की जगह कोई काउंटर ले लो। सो काउंटर इज, यहाँ पे जो काउंटर आपका वेरिएबल था उसी का इस्तेमाल कर लो। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस सर। ठीक है, अब आ गया बचा हुआ बात। बचा बात होने के बाद क्या हो, ये इक्वल टू आपका फिर से किसका पार्ट है, हार्ड कोडेड है ना, ये ऐसे ही प्रिंट होना चाहिए। तो ये काउंटर को यहाँ पे क्या करो, फिर से प्लस लगाओ और ये डबल कोट्स जो आपका जो डबल इक्वल टू है, दैट विल कम अंडर दिस वन। आप ऐसे कर दो और यहाँ पे फिर से कर दो प्लस। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है आपको? yes. अब बचा ये 2, ये 2 भी आपका क्या है, ये 2 तो एक्चुअल रिजल्ट है। और 2 कैसे रिजल्ट बन रहा है, जब n का काउंटर से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे 2 नहीं लिखना चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए n मल्टीप्लाई काउंटर। यस, ऐसे बनती है प्रोग्रामिंग। अब देखो मैं इसको रन कर दूंगा, आपका प्रोग्राम चल जाएगा। तो Sir, आप actually, I have a doubt. सॉरी, I have a doubt, sir. Why is double quotes? Actually, actually double code is that because my requirement is that you have to print the you can say statement in this way. अगर आपको केवल 2 का टेबल प्रिंट करना होता तो देखो आप ऐसे ही कर लेते हैं। लेट मी डू इट इन फ्रंट ऑफ यू। अगर मैं आपसे कहता केवल 2 की प्रिंट करो, टेबल 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो आप ऐसे कर लेते ना। इसके लिए आपको देखो कुछ नहीं करना पड़ता, यू सिंपली राइट दिस थिंग। यस और नो? देखो मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, इसको रन करूंगा। बिफोर दैट आई हैव टू कंप्लीट वन थिंग, बिकॉज वी आर टेकिंग काउंटर फॉर माय टेबल, सो इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 1। यस और नो? yes, sir. भैया, वरना तो 2 मल्टीप्लाई 0 2 हो जाएगा। सो वी टेक इट, तो इसी को तो लॉजिक बोलते हैं, काउंटर इक्वल टू 1। अब नाउ बिकॉज वी नो दैट द टेबल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड इट गोज टू द 10, 2 10s are 20, so here the condition should be less than equal to 10. yes or no? अब देखो मैंने आपकी टेबल, आपका प्रोग्राम तो सामने लिख दिया, बन गई 2 की टेबल। इसमें क्या किया, काउंटर काउंटर, वो 2 into 1 नहीं प्रिंट हो रहा है। So it will print the 4 4 लिया है, table. n equal to 4 लिया ऊपर से। अच्छा हाँ। सॉरी, हाँ यू गाइस हैव शार्प आईज। देखा, ये तो मैं भी नहीं पकड़ पाता। थैंक यू। चलो 2 2 1 2, so it will become 2 का टेबल। yes or no? Yes. So somebody asked me, प्रदीप, कि आपने ये सब क्यों किया? तो देखो क्या है, मुझे केवल ये नहीं प्रिंट करना, आई हैव टू फॉलो दिस फॉर्मेट। ये कुछ ऐसे प्रिंट हो क्या है ना, तो मैंने देखो क्या किया। अब इसमें अगर मुझे प्रिंट करके लाना है कि जो नंबर है यहाँ पे 2 वो प्रिंट हो क्या है, तो 2 प्रिंट करने के लिए क्या करोगे, मैं क्या कहूंगा, यहाँ पे n ऐसे प्रिंट हो जाना चाहिए, n। यस और नो? सही कह रहा हूँ? Yes. लेकिन अगर मैं यहाँ पे n प्लस कर दूंगा तो ये आपस में क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन। ये तो क्या करेगा, n में 2 प्लस 2 1 जा 2। यस और नो? Yes. तो इसीलिए यहाँ पे जब भी कोई आपको करना होता है, तो दिस इज द बेस्ट वे व्हेन यू आर ट्राइंग टू ऐड वन न्यूमेरिक एंड वन अनदर न्यूमेरिक एंड यू वांट टू जस्ट मेक ए कॉन्कैटिनेशन, तो उसके बीच में क्या लगा दो, स्पेस। अब देखो क्या है, ये क्या प्रिंट करेगा, ये 2 अलग प्रिंट करेगा और ये कैलकुलेशन अलग होगी, एंड इन बिटवीन देयर विल बी अ स्पेस। गेटिंग माय पॉइंट? Yes. अब उस स्पेस में मैं क्या यूज कर सकता था, मुझे चाहिए था स्टार, तो इस खाली स्पेस की जगह क्या प्रिंट करा दूं, स्टार। यस और नो? Yes. ये देखो मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ व्हाट इट इज प्रिंटिंग। क्या प्रिंट कर रहा है, 2 2 2 स्टार 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 और यहाँ पे 2 का टेबल। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए था, स्टार के बाद क्या चाहिए था, आई नीड 2 1 जा 2, 2 मल्टीप्लाई 1। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे प्लस करके एक वेरिएबल आपके पास ऑलरेडी पड़ा है जो ये काम कर रहा है 1 2 प्रिंट करने का, काउंटर। यस और नो? हाँ जी, यस और नो? तो मैंने यहाँ पे काउंटर ले लिया। अब काउंटर को ध्यान रखना है, अगर मैंने काउंटर के साथ बीच में कुछ नहीं लगाया होगा, सो इट विल अगेन मेक अ अर्थमेटिक कैलकुलेशन। इन दोनों को क्या कर देगा, काउंटर इसको प्लस कर देगा, तो इसके बीच में हमेशा क्या कर दो, एक स्पेस लगा दो। अब वो बात दूसरी है, आई कैन यूटिलाइज दिस स्पेस फॉर माई इक्वल टू।
इक्वल टू के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ कि नहीं? Yes. अब देखो मेरी टेबल कितनी अच्छी प्रिंट होगी। नाउ सी इट हियर। जैसे कि हम बचपन में वी ऑलवेज ट्राई टू राइट इन अ चाइल्ड, लिखा है 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 6, यस और नो? Yes. तो ऐसे ही तो आपको लर्न करना होता है धीरे धीरे। ऐसे आप लर्न करते हो, ट्राई टू डेवलप द लॉजिक, यू कैन अचीव। तो व्हाट यू हैव टू डू फॉर मी, यू हैव टू राइट द सेम प्रोग्राम। ऐसे ही एक एन का नंबर लेना इनपुट, और आप मुझे ऐसी टेबल प्रिंट करके दिखाओगे। ओनली द थिंग इज दैट यू हैव टू प्रिंट द टेबल यूजिंग फॉर लूप, while loop and do while। Got my point? Yes. तो आपको ये करना है। एंड लेट मी कंप्लीट वन मोर लूप। एक और लूप हमारे पास बचा है, यू कैन से द लूप एंड दैट इज नॉट एक्चुअली द लूप। ओके, वी विल टॉक दैट लूप व्हेन वी टॉक अबाउट द कलेक्शंस। एक और होता है फॉर ईच लूप, वो हम पढ़ेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, कलेक्शन। ठीक है, सो यू हैव टू राइट दिस फ्रॉम। एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आई एम बाइंडिंग द सेशन। किसी का कोई क्वेश्चन है? No, sir. और ट्रस्ट मी, लूप्स आपके सबसे ज्यादा यूज होने वाले कॉन्सेप्ट। लूप्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं इंटरव्यू में भी। इन इंटरव्यू दे कैन आस्क, दे डू नॉट आस्क यू सो मेनी थिंग्स, बट रियल लाइफ में एक ऐसी चीज मैंने देखी है कि रियल लाइफ इंटरव्यू में लूप ज्यादा नहीं पूछते हैं, लेकिन रियल लाइफ में लूप बहुत यूज होते हैं। आप प्रोग्रामिंग देखोगे, लूप लोग परेशान हो जाते हैं। ओके, सो लास्ट थिंग आई वांट टू टेल यू हियर वन थिंग, कि जैसे आपको मैंने बताया था क्या एग्जांपल, कि while के अंदर, for के अंदर आपने एक लूप के अंदर दूसरा लूप इस्तेमाल किया। आप मुझे सिर्फ एक प्यारी सी चीज बताना, ठीक है? एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन द सेशन, सो लेट मी रिमूव दिस पार्ट जो मैंने इसमें कमेंट कर रखे हैं, ताकि आपको इजी हो। मैंने यहाँ पे लिखा 1, ये स्टेप बाद हटा देते हैं क्योंकि मैं आपको कुछ और चीज बताने वाला हूँ। सबसे पहले बताइए, इस प्रोग्राम को रन करूंगा, क्या प्रिंट करेगा? 5 टाइम्स, Lord. है ना? अब देखो मैंने आपको क्यों बोला था देयर इज नो कॉन्सेप्ट समथिंग लाइक नेस्टेड लूप। क्यों? अब देखो क्या है, मैं अगर आपसे कहूं कि मैं ये वाला एक लूप है, इसको पहले मैं छोटा सा करूंगा। आई एम राइटिंग ए सेपरेट लूप हियर। यहाँ पे मैंने लिखा ये, और इसके अंदर मैं लेस देन 5 लिखता हूँ, और एंड हायर आई एम राइटिंग समथिंग लाइक दैट। एक काम करते हैं, ये जो मैंने कोड लिखा है, ये कोड मैं यहाँ लिखा। अब आप मुझे बताओ, कैन आई राइट दिस होल कोड हियर? यहाँ पे काउंटर नहीं करते हैं, काउंटर डुप्लीकेट वेरिएबल हो जाएगा। लेट मी मेक इट आई। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? कर सकते हैं। तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि आपके लिए नाउ इट विल बिकम बॉडी। तो आप कैसे चलाओगे? आप चलाओगे स्टेप 1 ये हो गया, स्टेप 2 ये हो गया, स्टेप 2 में कंडीशन चेक की 1 इज लेस देन 5, यस। तो आपको i लेस देन 1 के लिए ये कंडीशन पूरी चलानी है। चला दिया, सो इट विल प्रिंट द लॉर्ड 5 टाइम्स। 5 times. अब उसके बाद दोबारा कहाँ आते हो? स्टेप, सारे स्टेप कवर करने के बाद अगेन यू कम टू द कंडीशन पार्ट, यस और नो? आई विल बिकम, Yes. यहां तक आते आते आई विल बिकम 2। 2. तो जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो फिर से पूरा चलाओगे, Yes. आई विल बिकम 3 4 5। तो क्या फर्क पड़ता है? वाइल लूप के अंदर आपने फॉर लूप लिखा है, कोई कह देगा वाइल लिखा, वाइल के अंदर फॉर लिखा, और पता चला फॉर के अंदर क्या लिख दिया फिर से, डू वाइल। Do one. तो क्या फर्क पड़ता है हमारे लिए? तो सिर्फ एक चीज है, क्या? जब भी हमारा रन करेगा, वी हैव टू आइडेंटिफाई फॉर द आउटर लूप विच इज स्टेप 1, विच इज स्टेप 2 एंड विच इज स्टेप 3 एंड 4, यस और नो? Yes. जब भी स्टेप 3 को बॉडी को करोगे, उसको कंसीडर कर लेना कि आप स्टेप 3 को एक अलग रन करो, एक अलग प्रोग्राम मान लो। इसका आउटपुट लिखने के बाद, इसका आउटपुट प्रिंट करने के बाद, देन यू हैव टू गो टू द अनदर आइटरेशन। ट्रस्ट मी, चाहे जितना कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हो, आप कर ही नहीं सकते गलती। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes. तो आपको यू हैव टू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स, एंड प्लस यू हैव टू डू द असाइनमेंट फॉर मी दैट यू हैव टू प्रिंट द टेबल। और ये प्रिंट आपको टेबल करके यू हैव टू पुट इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। तो देखते हैं कौन फास्टेस्ट करता है इसको, ठीक है? और एवरीबॉडी शुड ट्राई, ठीक है? तो while फॉर में कुछ एग्जीक्यूशन का कुछ प्रॉब्लम, मतलब फॉर लूप फास्ट है, डू हाँ जी, हाँ जी, तो फॉर ऐसा लूप, कुछ है? हाँ जी, फॉर लूप इज ऑलवेज फास्ट देन द व्हाइल लूप, ठीक है? फॉर लूप क्योंकि उसमें होता क्या है, इट इज डायरेक्टली डिजाइन कि आप देखो, आप ऐसे देखो कि इसको डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि यहाँ पे इसको डिजाइन करते वक्त एवरीथिंग इज, ये माना गया कि एवरीथिंग इज फिक्स्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एवरीथिंग इज फिक्स्ड, यू नो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द काउंटर, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लूप, यू नो द एंड पॉइंट ऑफ द लूप। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऑलवेज फास्टर देन द व्हाइल,
ठीक है, और फॉर Okay. लूप को सबसे ज्यादा प्रेफर किया जाता है। गेटिंग माय ओके पॉइंट? गॉट इट। इसलिए ठीक है, ज्यादा यूज करते हैं फॉर लूप डू हाँ जी, व्हाइल से। इसलिए वाइल से सबसे ज्यादा इसको फॉर वाइल को मैंने आपसे बोला है, वाइल और फॉर में केवल एक तो डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, दूसरा लॉजिकल ये रीजन है जो मैंने आपको बताया, दैट इज द परफेक्ट वन, कि जिसने जैसा सिंटेक्स दिया उसको वैसे बनाओ। आप चाहो तो सिंटेक्स को चेंज कर सकते हो, है ना। अब यू विल सी सम टाइम इंटरव्यू विल आस्क यू वन थिंग, एक इंटरव्यू बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, दैट इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंटरव्यू, ठीक है, बाहर उसका रियल लाइफ में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पता है क्या, क्या आप ऐसा कर सकते हो, जस्ट रिमूव एवरीथिंग फ्रॉम द लूप, क्या इसमें सेमीकोलन लिख दो और उसके बाद जितने भी इसके 3 पार्ट लिखे हैं इसको हटा दो। तो इसके अंदर का अगर मैं ये हटा दूं ये पे स्टेटमेंट, क्योंकि बिकॉज इट इज यूजिंग काउंटर, आर यू एबल टू सी एनी कंपाइलेशन एरर? नो। कोई अगर आप किसी फॉर लूप के अंदर तीनों पार्ट डिफाइन करके ब्लैंक छोड़ते हो, दिस इज नोन एज इनफाइनाइट लूप। या कंडीशन नहीं है वहां पे इसलिए। कोई कंडीशन ही नहीं है, अगर कोई कंडीशन नहीं है Yes. तो द हॉर्स विल कीप ऑन रनिंग, कीप ऑन रनिंग। तो ये आपको, आप मुझे बताओ क्या रियल लाइफ में इसका कोई यूज हो सकता है? नहीं। नहीं। लेकिन इंटरव्यू पूछता है, नहीं. क्यों? तो इंटरव्यू इसलिए पूछता है कि यू शुड अवेयर अबाउट दैट, कि कभी कभी क्या होता है, डेवलपर ऐसी मिस्टेक कर देता है जिसके कारण वी आर एबल टू आइडेंटिफाई सम बग्स ऑन द यूआई, कि उसने कुछ ऐसा कर दिया, यहाँ पे क्या है, कंडीशन पार्ट ढूंढ के भूल गया डालना। कभी कभी ऐसा होता है कंडीशन ऐसी डाल दी कि दैट इज गोइंग टू वर्क एज ए इनफाइनाइट लूप। ये तो देखो इनफाइनाइट लूप है, लेकिन आप चाहो तो कभी कभी डेवलपर ऐसी कंडीशन देता है ना जो भी इनफाइनाइट लूप हो जाए। यहाँ पे कंडीशन क्या है, काउंटर इज लेस देन इक्वल टू 10, यस और नो? ठीक है, अब आपको मैं बताऊं, यहाँ पे काउंटर है तो कितनी बार चलेगा, 10 बार चलेगा, है ना। अब अगर मैं आपको लेस देन इक्वल टू 10 की जगह अगर मैं गलती से इसको ग्रेटर देन 0 दे दूं, कितनी बार चलेगा ये? इनफाइनाइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि देखो आप बोल रहे हो काउंटर की वैल्यू 1 से है, हर बार बढ़ाते जा रहे हो, आप बोल रहे हो 0 से बढ़े, अरे ये तो लाइफ लॉन्ग 0 से बड़ी ही होती चली जाएगी, यस और नो? So many things are there, and in the interview they can confuse you giving these things, and you have to stick on your thing. आपको अपनी एक चीज पे स्टिक रहना है, आप हमेशा ये फॉलो करना है, स्टेप 1 2 3। अगर आपने फॉलो किया, ट्रस्ट मी, आई कैन बेट ऑन दैट, अगर आप ऑनेस्टली फॉलो करोगे तो आप कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम हो ही नहीं सकता लूप का, because everything is defined in the step 1 2 3 and 4. Step 1 run only once, and step 3 only runs when the condition is satisfied. Getting my point? Yes. यस। ठीक है, अब कोई कहता है इनफाइनाइट लूप, अरे आप इनफाइनाइट लूप तो यहां भी बना सकते हो, है ना। तो ऐसे आप इनफाइनाइट लूप बनाने के तरीके हैं, ओनली द थिंग इज दैट इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द इंटरव्यू। रियल लाइफ में आपको जो आपका आएंगे, आपको हमेशा जो है ऐसे मिलते हैं, नेस्टेड लूप मिलेगा, ठीक है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग द प्रोग्राम कि आप बिफोर टुडे एंड ऑफ द डे यू विल सेंड मी द प्रोग्राम ऑन द व्हाट्सएप। इफ यू आर रियली बिजी, आई अंडरस्टैंड दैट टुडे इज, यू कैन से सैटरडे, यू आर गोइंग टू कुक। हाँ जी, हाँ जी सर एक एक लास्ट क्वेश्चन है, जो आपने सबसे लास्ट में एक एग्जांपल दिया अभी डू वाइल में, हाँ जी थर्ड वाले आप क्लास पे जाइए, हाँ। तो सर हाँ इसमें जी। 25 बार लॉर्ड प्रिंट करना चाहिए ना, 5 बार ऊपर का चलेगा एंड 5 बार वो प्रिंट करेगा। कहाँ पे बताइए, ये जो अभी प्रोग्राम चल रहा है? नहीं नहीं सर, आपने ना इससे, ये वाला नहीं है वो जो तो अभी हाँ मैंने हाँ फॉर लूप के अंदर डू व्हाइल किया शायद वो वाला बोल रहे हाँ हैं। सर, फॉर लूप के अंदर जो डू वाइल वो अच्छा, वो तो मैंने हटा दिया, कोई बात नहीं, वो आपका देखो, मैं आपसे क्या कह रहा मेरा हूँ। अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर काउंटर का वैल्यू हमने लेस देन 5 दिया, उसके अंदर हमने, हाँ सर सॉरी, नो नो वो, नो 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 प्रॉब्लम, आई हाँ अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। फिर फॉर लूप लगाए तो फॉर लूप 5 टाइम एंड काउंटर की वैल्यू 5 टाइम, तो एवरी 5 टाइम वो अंदर वाला भी चलेगा, वो 5 बार काउंटर का, तो ऐसे करके तो 25 बार लॉर्ड प्रिंट होगा ना। अब द बेस्ट थिंग इज दैट यू हैव टू ट्राई दिस थिंग, है ना। आप ट्राई करो और आज मुझे बताओ, गेटिंग माय पॉइंट, यू विल नेवर फॉरगेट इन दिस लाइफ। कॉन्सेप्ट मैंने सबसे सिंपल एक बोला है, अब मैं जो आप प्रोग्राम बोले उसको आप खुद लिखो और खुद रन करो एंड देन ठीक है टेल मी, सर, ठीक है। और आपको देखो ध्यान एक चीज रखनी है, मैं क्या कर रहा हूँ, आपको जो बेस कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बिकॉज द थिंग इज दैट सिनेरियो कैन बी मल्टीपल, है ना। एक फॉर के अंदर वाइल लगाओ, वाइल के अंदर फॉर लगाओ, फॉर के अंदर डू वाइल लगाओ, लेकिन एक चीज कभी चेंज नहीं होगी, क्या? दिस ऑर्डर, है ना। ये ऑर्डर हर लूप का फिक्स है, आप उस ऑर्डर को फॉलो करो। इन दैट केस इफ यू आर कंफ्यूज देन यू कैन आस्क, क्लियर है? यस। है, और पहले तो आप सबसे पहले यू विल लर्न सो मेनी थिंग्स व्हेन यू विल ट्राई टू क्रिएट द प्रोग्राम ऑफ दैट टेबल। इस टेबल के प्रोग्राम को करो, आप बहुत कुछ लर्न करोगे, यू विल सी द डिफरेंसेस, क्योंकि अब एक प्रोग्राम को अगर आप 3 तरीके से कर रहे हो तो आपको डिफरेंस खुद ही पता चल जाएगा, यस और नो? ठीक है, सो आई एम बाइंडिंग द सेशन। बिफोर दैट डू वन थिंग, जिसने भी ज्वाइन किया प्लीज पिंग
join on the WhatsApp group, क्योंकि Nitesh try to you can say capture the things who is joining. So please request, please ping join. जिसने नहीं किया वो सब लोग ping करेंगे join, and then we can bind the session. ठीक है? Yes. Okay, so I'm binding the session. Please ping on the WhatsApp group. Have a nice day. सर आप एक लास्ट क्वेश्चन है सर, ये जो आप इक्लिप्स यूज कर रहे हैं ये कौन सा है मेरे पास I'm not able to hear you clearly. Can you come little closer to mic? या सर एम आई ऑडिबल? Yes. सर ये जो आप इक्लिप्स का वर्जन यूज कर रहे हैं ये कौन सा है, मतलब इसके नाम होते हैं ना जैसे ट्यूना वगैरह, बहुत पहले मैंने यूज किया था, तो अभी जो मेरे पास है वो 2019-06 ऐसे करके -06 है, तो That is not a problem. अगर आपके में Java 8 install है और Java 8 run कर रही है तो कोई problem नहीं. Java 8 होनी चाहिए बस. Reason is that what happens that when you go with some other versions of Eclipse and that is not compatible. जैसे कि Eclipse का एक वर्जन है जो लेटेस्ट आ रहा है उसमें क्या है Java 11 और उसके above को सपोर्ट करता है. ठीक है, तो प्रॉब्लम ये अगर आपके में जो भी वर्जन पड़ा है and you are able to configure the Java 8 then it is good to go. ओके सर, आप जो यूज कर रहे हैं उसका नाम क्या है? I think I'm using Eclipse Oxygen 3. I think मैं यूज कर रहा हूँ. Let me check. मेरा शायद Oxygen 3 है. No, I'm using 2019-12. अच्छा, जो हम ऑफिस में यूज कर रहे हैं वो ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं. इट इज 2019 and 12. ठीक है. ओके सर. तो आपको मैंने बोला एक कंडीशन से सिंपल सी, व्हेनेवर यू आर ट्राई टू डाउनलोड आपको ये मेक श्योर करना है कि वहां पे क्या हो जावा 8 को सपोर्ट करे. लेटेस्ट में मैंने देखा जावा 8 को सपोर्ट करता नहीं. क्लिप्स डाउनलोड यू विल सी, सो इट विल टेल यू अबाउट द लेटेस्ट वर्जन दैट इज ओनली सपोर्टेड ऑन जावा 11. मैंने देखा हुआ है यहाँ पे. अगर आप करोगे तो यहाँ पे कहीं इंस्टॉल करते वक्त लिखा होता है. तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि उसमें मतलब जावा 8 के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए. ठीक है. इज इट ओके? यस सर. ठीक है. एंड स्टिल यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन पिंग. ओके. एनी अदर क्वेश्चंस? सर क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा आपसे बात करना था. सो व्हेन यू विल बी आपको कॉल करके बात कर सकता हूँ. You can call me after this batch because now I have another batch at 2:30. So you can call me after this. Okay? Okay. So you want to discuss something technical or you want to discuss something other than that? Other things, sir, technical. Okay. Okay, you can call me after this. Just come binding this session. Okay? Okay. Others, anybody have any other questions related to technical? Gulam, you are good? Yes, good. गुलाम आप लेकिन कम बोलते हो भाई. गुलाम थोड़ा बोला करो. I will come to meet you. Actually, deployment call the same time. I think. Oh, Gulam, I will come to meet you. Yeah. Okay. Okay. Anybody else? Rabia, Ranjita, Shreya, Shruti, everybody is good? Yes. Yes, sir. चलिए, कुछ लोगों ने ब्रेकफास्ट किया है. That's why I'm able to hear the proper voice. कुछ लोग ब्रेकफास्ट नहीं करते ना. चलिए कोई बात नहीं. ठीक है. Okay, we will meet tomorrow. And before that, I'm waiting for your program. Thank you. Have a nice day. Thank you. Yes, sir. Thank you. Bye. Bye.